ठीक है, done, right? Recording had been started. Now we will be extending, right, our today's in today's lab, right? We will use the same project today, but we will be extending it. We will be changing something, right? In pom.xml we will be changing something in maven configuration, and we will be installing a separate server also, right, for our nexus, right? And we will integrate that server with Jenkins. So obviously we are going to need what Jenkins. So I'm going to start this instance, but we can do that in let's start it. Why we should right wait. So इसको start कर देते हैं, और अपने को भी एक नया इंस्टेंस भी लॉन्च करना है जहाँ पे हमें नेक्सस इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो जो नेक्सस का हमारा इंस्टॉलेशन है, राइट, इट्स आल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म, मींस बेसिकली आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे विंडोज में करना है, चाहे आपको विंडोज सिस्टम पे करना है, चाहे रेड हैट पे करना है, राइट? ऑब्वियसली इट्स अ जिप फाइल in which the nexus code is there. Only thing that we are right should be worried about the resource, right? Generally nexus server needs because it's a heavy stuff, right? Because it will be dealing with what multiple projects will be dumping, right, data, right, into it. And obviously many APIs call will also hit it. So the minimum requirement generally, right, this kind of installation have minimum 2 GB RAM, right, or 1 GB RAM in some cases. But obviously you cannot do the Nexus installation same machine में, Jenkins के machine पे ही Nexus का installation अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो जेंकिंस मशीन है उसका रिसोर्स ही अपने आप में कम है, राइट? कितना है? 1 GB रैम और राइट 1 CPU। तो अब मैं उसमें अगर जाके नेक्सस इंस्टॉल करूंगा सेम मशीन पे, राइट, ऑब्वियसली राइट इट विल लोड, एंड ऑब्वियसली इट विल नॉट गुड प्रैक्टिस आल्सो जनरली दिस आर्टिफैक्टरी सर्वर्स लाइज ऑन डिफरेंट सर्वर आल्सो। तो हम एक दूसरा मशीन बनाएंगे, राइट, और वहां पे हम उसको इंस्टॉल करेंगे, बट वहां पे भी हमारे पास रैम इतना नहीं है जितना नेक्सस को चाहिए। तो हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके, राइट, हम उसका जो रिक्वायरमेंट है मेमोरी का वो कम करेंगे, क्योंकि हमें तो मिनिमम जॉब ही रन करने हैं। लेकिन अगर हम वो कम नहीं करेंगे और नेक्सस सर्विस को अप लाने की कोशिश करेंगे, तो नेक्सस सर्विस क्या होगा, अप आएगा ही नहीं, डाउन होगा। तो आई विल गिव यू दोस राइट हिंट्स कि कहाँ पे कैसे करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सब चीजें करनी पड़ती है, कई बार ट्विक करना पड़ता है वो सब, या तो बढ़ाना पड़ता है या तो कम करना पड़ता है, ठीक है? तो बढ़ाना तब पड़ता है जब हमारे पास अच्छा खासा रिसोर्स है और राइट हमें पता है कि लोड ज़्यादा आने वाला है, तो उस हिसाब से हम उस कॉन्फ़िगरेशन को जाके इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है। एंड डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे, राइट, लेट मी शो यू वन थिंग, लेट इट लोड व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू। So this is us, right, which want to be a developer, right, or build engineer, whatever, right, and you are contributing to code, right, a source code which we have our repository, right? Yesterday what we had done, and we have a continuous build system, right? And this continuous build system is already integrated, right, with right maven, right? And I would say you can say, right, obviously JDK also, right? It is integrated, right? हमने global tool configuration में जाके इसको integrate किया था, right? And also we had a we used plugin, right, to get this project called maven project, right? We can create maven project. So obviously हमने अभी ये सब चीजें तो की, right? Jenkins में हमने जाके एक जॉब क्रिएट किया, इसको हम बोल सकते हैं, राइट, बिल्ड जॉब, ठीक है? वो एक जार फाइल क्रिएट कर रहा है, राइट, और लोकली डिप्लॉय कर रहा है, राइट? एंड वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट, विद similarly, right, they are integrated maven to see. Okay, so this stuff we had done, right, and it has builded job, and locally in this Jenkins master server itself, right, we had builded a jar which is deployed in some other right
directory, which is say our repository of keeping the build up. Now today we will move ahead, instead of uh, uh, deploying locally, right, we will deploy remotely in one of the artifact servers, right, and we are using Nexus. So now we are using this artifact server or Nexus. They are better managed way of keeping, right, your resources, right, which has been used to build, right, your application. So we are going to integrate with it. Right? So it will take care of both snapshot and release artifacts, and it will keep there in their repositories. So we are now going to set up this artifact server, which I right, and then we have to basically, if you see this arrow, what I marked is fine, right? We are integrating Jenkins, but how? Basically, we are integrating it with. Let me move this arrow, right, to Maven. Okay, so basically integration is happening with Maven, right? So Maven is a middleman, right? So we are configuring Maven. So Maven will talk to artifact server, and Jenkins job, when will triggered, will need an authentication, to how I will authenticate with this artifact server, and Maven will have those authentication information. First authentication will happen for the API, and then whatever you are generating, right, will be deployed, right, using via an API to what artifact server, which will be configuring in pom.xml of our Git repository. So this is what basically, right, is going to happen. Okay, so I hope no question, clarity in terms of what we are going to do. Any question on this? No. Okay, then I will move, and Jenkins is up and running. I will launch an instance. Okay, कौन सा लेना है? Amazon AMI लेना है, Red Hat लेना है, Ubuntu लेना है? Whatever you prefer. Ubuntu ही ले. Ubuntu ले लें, कौन सा 20 latest version? 20 of. हम यूज तो करेंगे फ्री टायर वाला ही, ठीक है? T2 माइक्रो दो हमारे पास है, हम राइट 2 मेमोरी ले तो ज्यादा अच्छा है, बट वी कैन मैनेज राइट इन दिस आल्सो. सो आई विल सेलेक्ट दिस. इसको हटाना पड़ेगा, बहुत चले ब्लॉक करता है कई बार. और रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हैं हम डायरेक्टली, पोर्ट हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है? नेक्सस का डिफॉल्ट पोर्ट 8081 है, ठीक है? तो हम जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा हमारा तो हम करेंगे. So I'm using DevOps learning and launch. So I have created one document also for this. So to do this installation. So obviously you have to do what Nexus also have a prerequisite of having JDK, right? And then you have to create a directory in which we will downloading Nexus, and then we will be creating a user called Nexus, and will give permission to that directory, and then we will go to the binary folder and we will start the service. Okay, so it is coming up. I am going to give it a name called Nexus. I will save it. और ये आर्टिफैक्ट सर्वर है, राइट? Yes, it is an artifact server जहाँ पे हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे. एक्चुअल अभी तो ये नॉर्मल सर्वर है फिलहाल के लिए, ठीक है? अभी इसमें कुछ भी नहीं है. अभी एक Ubuntu सर्वर है जिसमें हम लोग लॉगिन करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है? और ये वाला जो सर्वर है नेक्सस सर्वर, ये मेवन के साथ ही इंटीग्रेट करेगा, राइट? यस, ऑब्वियसली राइट. मैवन ही आर्टिफैक्ट जनरेट करने वाला है, राइट? यस. और मैवन के थ्रू ही हम उसको पुश करेंगे उधर में, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन नेक्सस का हम मैवन में कॉन्फ़िगर करेंगे, मैवन के सेटिंग्स में. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन. cd downloads control r ssh. हमने ubuntu लिया है.
ठीक है, हमने लॉगिन किया है। हाँ, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, मीनवाइल ये अपडेट हो रहा है। हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे। इसमें I have Jenkins. I think in Jenkins I have kept that. Yeah, Nexus Sonatype installation guide. Let it open. Yeah. So this is the installation document, right? Which you have to follow also, right? When you will be doing the right installation. So obviously, um, uh, in that case, I have used right EC2 Linux system. Now we are using Ubuntu, but that is not a challenge, right, at all. So we will be doing right update. We already did it, right, apt update. Now we will be installing right open JDK. So obviously in Ubuntu we can install this, right? Sudo apt install open JDK 8 JDK. I think this will install here. Yeah, the JDK, right? That's what we want. So Ubuntu के लिए अलग कमांड है जावा इंस्टॉल करने का, तो वो हमने इंस्टॉल कर दिया, राइट? दैट इज आवर प्रीरिक्विजिट को इंस्टॉल होने देते हैं। And then right I will walk you through meanwhile it is downloading. So we are not doing nothing in root. We are creating an app folder, and an app folder we will be downloading this Nexus, this version, right? And then we will be untarring it, and we will get a folder, and then we will rename that folder. So this renaming is an optional step. If you want, you can do that. After that, right, we will be creating an access user, and after creating an access user, right, we will be giving permission to right that folder, right, in which all the Nexus files are there, because this will be run as a Nexus user, and then we will do the configuration. Now the step 6 is very important, right, in terms of options, basically VM options, and where you want to write data. So I mentioned some important aspects out here, right, but only thing necessary, right, for you to understand this memory part, which is very important. Else rest all is depend upon you, what, where you want, what value you want to change, that I will, right, talk about. Okay, now our JDK installation is done. Now we will be, right, creating this, the third step. So what I'm doing, I'm creating an app directory, right, and the Ubuntu user I'm moving to right app directory. मैं root के app में चला गया, right? If you see pwd/app root में, right, and the user through which I'm doing the installation is Ubuntu user, right? That I have not changed. Okay, अभी till now whatever I'm doing as a normal Ubuntu user only. Okay, after this, right, I'm going to download this. First, I will check whether we have wget or not. Yeah, we have wget. Okay, so I will. सो नेक्सस भी ऐप फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो गया, ठीक है। tar.github है, इसको अनटार कर देते हैं। ओके, सूडो करना था मुझे, तो इसीलिए परमिशन डिनाइड आया, तो सूडो करके करना है क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में है ना। तो सूडो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर आ गया है, राइट, नेक्सस वर्जन। सो वी कैन मूव दिस एज अ नॉर्मल नेक्सस फोल्डर, राइट, कीपिंग रिमूविंग द वर्जन एंड ऑल स्टफ। तो इसको नेक्सस नाम दे, माय बैड, शुड बी सूडो। ओके, so now it has been renamed also. Now everything, right, and Nexus is a root is owner and root is user. So now we have to change that, right? We have to create a user. So we can use sudo, right, add user, and
say Nexus. So I think command is same, but somewhere we have user add kind of command also, right? But add user Nexus will run in Ubuntu machine also, but it will ask certain things, right? If you want to give any password to this, right? So I will say they dete Nexus. Okay, these all are optional, so I will say yes. So user has been created. We can check, right? Grab Nexus then etc password just to confirm, right? Yes, it has user has been created there. Okay, now the permission change, right? For whatever file folders everything in right Nexus folder the owner should be user Nexus and right group should be Nexus. So sudo chon -r Nexus colon Nexus and then write the name of the folder which is Nexus. Done. So if I do ls minus ltr, I can see, right, it has been changed. If I do nexus slash, so everything, right, whatever there are also change the user as nexus. Okay, now we are done with this part. Now right, we have to come to the execution part. For that we need to do some changes since our system is not that capable in terms of resource, so we have to take care of that also. नहीं तो क्या होगा, बेसिकली आपका नेक्सस आपको दिखाएगा स्टार्टेड बट थोड़ी देर में डाउन हो जाएगा बिकॉज आपके पास 1 GB रैम है और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है मैं बताता हूँ. सो नेक्सस बिन के अंदर जाना है अपने को, ठीक है. इसके अंदर ये दो फाइल है nexus.rc और nexus.vm ऑप्शंस. तो सबसे पहले nexus.rc में चेंज करना है अपने को. इसमें बताना है रन एज अ यूजर, जो ये अनकमेंटेड है, राइट, इसको कमेंटेड है, इसको अनकमेंट करना है, ठीक है. माय बैड, एस्केप अंडू और अनकमेंट किया और यहाँ पे डाल देना है, इंसर्ट कर देना है नेक्सस यूजर, जिस यूजर से आप इसको रन करोगे, मतलब जो प्रोसेस रन होगा. तो ये माय बैड, मैंने गलती क्या की है वो मैं बता देता हूँ. मैं इसको ऐसे नॉर्मल वी नहीं कर सकता, इसको मुझे सूडो करना पड़ेगा क्योंकि ये राइट रूट डायरेक्टरी में है. यहाँ से फिर मैंने इसको अनकमेंट किया और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस कर दिया, ठीक है. नाउ अब important configuration again related to VM options. So vi sudo vi right nexus dot vm options इसको खोलते हैं. अब यहाँ पे देखो ये कितना इसको चाहिए मेमोरी 1200 और हमारे सिस्टम में कितना है 1000 right और 1 GB 1024 yes whatever right you say 1.2 GB. हाँ. अब ये इसके रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इतना तो चाहिए ही है, मैं इसको ऐसे करके रन कर रहा हूँ. तो ऑब्वियसली वो लुक आउट करेगा कि इतना मेमोरी मुझे चाहिए, वो ढूंढेगा बट उसको मिलेगा नहीं नेक्सस को. एंड आपका नेक्सस क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा एंड बिकॉज ऑफ मेमोरी इशू राइट वो फेल हो जाएगा बार बार, राइट. और आपको एरर में भी एरर जो लॉग्स हैं इसके नेक्सस के वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन साथ रन किया. तो यहाँ पे आपको क्या जाके चेंज करना है, आप बोलोगे नहीं मेरा जो काम है अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं राइट, क्या 2 या 3 जॉब ही तो रन कर रहे हैं, तो उसके लिए एनफ है अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखूँ कितना 300 मेमोरी में, तो उतने में भी क्या होगा मेरा नेक्सस का जो प्रोसेस है वो जो चलेगा ही और उसके पास कोई एपीआई से हिट भी आएगा तो इतना लोड नहीं आएगा. तो फॉर माय प्रोजेक्ट फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ आई कैन चेंज दिस टू 300 M, but in actual world right you should not ना, either you have to increase it as per the demand right. आपके सिस्टम में ज्यादा रैम है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपका मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये जगह पे आके इसको इंक्रीज कर सकते हो. बट because of our lab need right we are reducing it and sometime in some organization also you have to do that right कि मेरा requirement इतना है और ये अपनी आ रहा है और मेरे को इतना लिमिटेड ही चीजें रन करनी है तो मैं इसको यहाँ पे कन्फिग्रेशन करके चलाने लायक तो बना दूँ, राइट. तो दिस इज व्हाट ट्रायल वे. कई बार आप देखोगे 500 में भी फेल हो जाएगा राइट, तो फिर आप उसको राइट और रिड्यूस करोगे तो एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो चलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये यहाँ पे यही चैलेंज था जो मैंने जब पहली बार राइट नेक्सस किया तो मैंने फेस किया था प्रॉब्लम. देन आई आइडेंटिफाइड कि इसका सॉल्यूशन ये है अगर मुझे इसको रन करवाना है, इसका प्रोसेस राइट रन करवाना है. तो अब ये मैंने क्या कर दिया,
300 M कर दिया। अब मेरे सिस्टम में मेमोरी है 1024, उसमें से मैं 300 इसको एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लुकआउट 300 करेगा और उतने पे ये काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैंने इसको ज्यादा लोड दिया तो ये बैठ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, 300 के ऊपर। अभी मैंने ये भी चेंज कर दिया, एंड only thing right now I have to do to start my process is what, sudo /nexus, which is a script out here, and it also has start, restart, stop options. So I will do start and I will run in the background. Okay. So it's saying, right, it has started. Let's see whether, right, actual process has been started or not. Okay. So ps aux pipe grep nexus. So we can see, right, this is there. बट समटाइम व्हाट हैपेंस, राइट, यू विल सी दिस, वो स्टार्टिंग भी बोल रहा है आपको, ठीक है, और उसके बाद राइट ये प्रोसेस भी चल रहा है, बट स्टिल यू विल सी, राइट, आफ्टर सम टाइम, राइट, इट गेट्स डाउन। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब मेमोरी रिलेटेड इश्यू है, वो अगर डाउन हो रहा है। और वो आप कहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे इनका cd etc, एक तो लॉग आपका मेन फोल्डर पे आ जाएगा, नॉट हियर, हाँ, यहाँ पे जो लॉग फोल्डर है इसके अंदर आपको इसके लॉग दिखाई देंगे, nexus डॉट लॉग, राइट। तो यहाँ पे आपको मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी इशू है अगर nexus ने लॉक किया तो, थ्रू विच यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। बट इफ योर प्रोसेस इज रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वापस से मैंने पीएस किया और मेरे को दिख रहा है, राइट, तो इसका मतलब स्टेबल है ये, ठीक है। बट जरूर इसको थोड़ा टाइम देना, राइट, कि ये नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चेक करना, डायरेक्टली बिलीव नहीं कर लेना। समटाइम आपको स्टार्टिंग देख के लगेगा कि हाँ स्टार्ट हो गया, बट एक्चुअल एट द एंड नहीं हुआ है। देन यू हैव टू डिबग, राइट, एंड यू हैव टू गो टू लॉग्स एंड सी व्हाट इज द रीजन। And since, right, it is very data exhaustive stuff, right, it does that stuff related, because जरूरी नहीं कि आपका एक ही प्रोजेक्ट इस पे डाटा राइट कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंटीग्रेट होंगे, राइट, और नेक्सस पे राइट कर रहे होंगे, और हर कोई लुकआउट करेगा अपने रिसोर्सेज का। जरूरी नहीं कि एक ही फाइल होगा हर आर्टिफैक्ट में, हो सकता है एक प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट में, राइट, 100 200 राइट आर्टिफैक्ट जनरेट हो रहे हैं। तो इतना सारा डाटा को उसको सर्च करके देना, उसके लिए वो क्या कर रहा है, ये इलास्टिक सर्च यूज कर रहा है, एंड इलास्टिक सर्च के लिए वो डाटा इंडेक्सिंग कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है मेमोरी का, नेक्सस को। एंड फॉर दैट, राइट, ऑब्वियसली यू विल फेस चैलेंजेस अगर आपका रिसोर्स अच्छा नहीं है सिस्टम का, और आप नेक्सस पे उस पे, राइट, काम कर रहे हो, उसको हैवी लोड दे रहे हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो गाइस, ठीक है। दूसरा, इसकी किस पोर्ट पे चल रहा है, राइट, तो उसके लिए ऑब्वियसली वी कैन यूज sudo netstat -nap pipe grep, इसका प्रोसेस आईडी क्या है, 5682, जो भी चल रहा है इसका प्रोसेस। तो मैंने गलती कर दिया है क्या, हाँ, इसके पास नेटस्टेट है नहीं, तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt install nettools। ओके, दीपक, ये जो आपने अभी बताया, हमने ये नेक्सस को हमें अभी हमने 300 MB मेमोरी एलोकेट किया, राइट। इसको अगर हमको मॉनिटर करना है तो हम इस बाकी के जो प्रोसेस है उससे भी मॉनिटर करें तो चलेगा ना? हाँ, ऑब्वियसली। जैसे कि टॉप में भी उसका दिखाता है कि वो कितना मेमोरी उसने यूज किया है क्या नहीं। हाँ, तो अभी वो कितना यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने उसको बोला है नेक्सस को कि मैं तेरे को 300 से ज्यादा नहीं दूंगा यस, ये कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। भले उसमें से लोड आया नहीं आया, राइट, वो यस, उसको जो रन करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो मैंने रिड्यूस किया, तो उतना उसको मिलेगा, और वो बोलेगा हाँ मेरे पास इतना मेमोरी मिला है, तो मैं भाई चल रहा हूँ, ठीक है। यस। लेकिन वही अगर आपने 1200 दिया, आपके सिस्टम में उतना मेमोरी नहीं है, वो ढूंढने जाएगा और बोलेगा अरे मेरे को तो मेमोरी नहीं मिल रहा है, तो फट ही जाएगा आपका नेक्सस सर्विस, राइट, स्टार्ट। ओके, नाउ मैंने नेट टूल्स इंस्टॉल किया, तो मेरा नेटस्टेट कमांड चलना चाहिए अभी, और आई कैन सी, राइट, ये 8081 पोर्ट पे चल रहा है नेक्सस। तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, ब्राउजर पे। तो उससे पहले मुझे वाइट लिस्ट करना पड़ेगा मेरे, राइट, नेक्सस को। गो टू द सिक्योरिटी,
and edit the security group. Okay. Where? I will edit this inbound rules and add port 8081. I will add this rule already added, and I will save this rule. Okay. Or once it is added, I will do what? I will basically copy the IP. Go Control V 8081 पे हिट कर देता हूँ. तो ये देखो अपना ब्राउजर तो आप आ रहा है. अब इसमें लॉगिन करना है. तो इसका यूजर नेम पासवर्ड है admin and password is admin123, right? Default. Admin123. Sign in. Don't save. Okay. Now see, I'm now logged in as an admin, right, to my Nexus server, and a few things that you should be aware, right? One thing is your settings, right? If you see, right, a machinery icon right here, I'm clicking, I'm getting inside. Here you will see your right repositories, basically, right, in which you can the specified API details would be there. तो ये जो रिपोजिटरी है इसमें आपके इतने तरह के रिपोजिटरीज हैं जिसको राइट यूज कर सकता है कोई. तो मैं नेक्सस पे अपना मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी बना सकता हूँ, है ना. और अपना रिलीजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैवन रिलीजेस और मैवन स्नैपशॉट यूज कर सकता हूँ. तो ये जो मेरा मैवन रिलीज और मैवन स्नैपशॉट है, यहाँ पे इसके डिटेल मिलेंगे. इसका यूआरएल क्या है, राइट, जो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा pom.xml पे, राइट. तो यहाँ पे आके राइट वो इसको यूज करके मैवन रिलीज के एक्चुअल रिपोजिटरी में डालेगा. ये सेटिंग्स है, ये वाला पार्ट, राइट. तो यहाँ से मुझे इसका URL मिल जाएगा रिलीज का, स्नैपशॉट का, राइट, इस रिपोजिटरी में. उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है. And I can create my own repositories also, right? It has given the right flexibility and use right my own right custom repositories also. ये स्नैपशॉट का है, ठीक है. नाउ कमिंग टू मेन थिंग इज अ ब्राउजर सर्वर कंटेंट, जहाँ पे यूजर आके देखेगा कि भाई क्या गया है क्या नहीं गया. तो इसमें क्या, कहाँ पे कंपोनेंट्स में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा आपका रिपोजिटरी. जैसे अगर मैंने कुछ पुश किया स्नैपशॉट में, राइट, अपना जॉब ट्रिगर किया और वो उसने डिप्लॉय किया जाके आर्टिफैक्ट्स जितने भी है, राइट, यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए मैवन स्नैप. अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो कंपोनेंट्स, राइट. अभी तक कुछ भी यहाँ पे आया नहीं, हमने अभी इंटीग्रेट नहीं किया इस नेक्सस को. नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके. तो इट मींस दीपक, जो आपने कल बताया था कि स्नैपशॉट एट टाइम उसका रिलीज नहीं दिखाता है, सॉरी यस रिलीज नहीं दिखाता है, टाइम स्टैम्प. हाँ, तो वो सारी चीजें इधर दिखेंगे, राइट? इधर दिखेंगी, हाँ, जो हमने लोकली डाला था, ठीक है. हमने जो लोकली देखा था ना, लोकल सर्वर, एक लोकल डायरेक्टरी बना के माय आर्टिफैक्ट उसके अंदर डाला था. नाउ ऑल दोस कंटेंट्स आई विल सी हियर. ओके. ओके, नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है. कैसे करना है, तो उसके लिए हमें अपने जेंकिन सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा. स्काइप ले लेते हैं और कंट्रोल ऑल्ट टी, get a terminal, cd downloads, controller ssh. I hope our Red Hat instance है कि Ubuntu है अपना Jenkins. देखते हैं, रुको. Ubuntu पक्का ना? हाँ पक्का. चलो, I will believe विशाल. Ubuntu. Yes. Great. So अभी यहाँ पे हमारा Maven इंस्टॉल्ड है, राइट, और हमारा Jenkins का सर्विस प्रोसेस चला है. तो अभी मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले Maven को बताना पड़ेगा कि भाई नेक्सस सर्वर में कैसे आपको लॉगिन करना है और किस आईडी
के लिए आपको करना है। तो ये जो आईडी का जो मैपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आईडी कहाँ पे आप डिफाइन करोगे, ये क्या आईडी होता है, और आप उस आईडी को कैसे pom.xml के साथ राइट रिलेट करते हो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा मेवन का राइट कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस पाथ पे रहता है। तो ऑब्वियसली उसके होम डायरेक्टरी में होगा। मेरा यूजर शेयर मेवन मेरा होम डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसका कॉन्फ बेसिकली एक सॉफ्ट लिंक है राइट, जो कि एक फाइल पे पॉइंट करता है। तो लेट्स सी दैट। तो यूजर शेयर मेवन है ना, इसके अंदर गए तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये इसके लाइब्रेरी बिन सब मेवन के ये पाथ पे रहते हैं राइट। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो आप, तो कॉन्फ़िग जो है सॉफ्ट लिंक है जो किसको पॉइंट कर रहा है, ईटीसी मेवन डायरेक्टरी को कर रहा है। तो मतलब मेवन का कॉन्फ़िगरेशन ईटीसी मेवन पे रहता है जनरली। तो मैं वर्क करूंगा तो सीडी कॉन बट चले जाऊंगा कहाँ पे, ईटीसी मेवन पे। अगर देखा जाए तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो उसकी फाइल रेफर कर रहा हूँ जो कि ईटीसी मेवन के, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा डायरेक्टरी यूजर शेयर मेवन कॉन्फ, बट एक्चुअली मैं कहाँ पे हूँ, ईटीसी मेवन, दैट इज द सॉफ्ट लिंक राइट। नाउ इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ configurations है m2.conf right which is related to maven again right, and there is settings.xml right which is again related to maven। तो ये जो settings.xml है यहीं पे हमें राइट चेंज करना है। तो ये कहाँ पे है, स्लैश etc में है। तो ऑब्वियसली मैं नॉर्मल vi नहीं कर सकता, तो मुझे sudo vi करना है settings डॉट। इसके अंदर टैग्स रहते हैं राइट। वैसे ही जिस सर्वर के साथ मेवन को कनेक्ट करना है राइट, तो वो सर्वर का डिटेल हम सर्वर्स टैग के अंदर देते हैं। तो आई विल सर्च फॉर सर्वर्स, ठीक है। तो आई कैन सी राइट अ कमेंट सर्वर्स टैग दिख रहा है, ये कमेंट वाला है राइट। जो यहाँ पे सर्वर्स टैग लिखा है ये कमेंट है, और ये इसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि ये सर्वर टैग क्यों होता है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल्स keyed by the server ID used in the system. Authentication profile can be used whenever Maven must make a connection to a remote server, है ना। तो मतलब मेरे को Nexus के लिए जो एक रिमोट सर्वर में सर्वर स्टैक के अंदर में डाल सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये तो कमेंटेड है, जो अनकमेंटेड है वो सर्वर स्टैक के अंदर डालना है ये वाला। इसके अंदर सर्वर स्टैक के अंदर एक सब टैग और है राइट। वो टैग का क्या नाम है, लेट मी फर्स्ट कम डाउन हियर। ये वाला सर्वर टैग जो मैंने हाईलाइट किया, इसके अंदर देखो सर्वर टैग है। सर्वर टैग क्या होता है, स्पेसिफाइज द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन टू यूज व्हेन कनेक्टिंग अ पर्टिकुलर सर्वर। तो हम उसके पर्टिकुलर सर्वर कनेक्ट करने के लिए हमें क्या देना है, यूनिक नेम विद इन द सिस्टम रिफर टू बाय द आईडी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी देना जरूरी है। वो आईडी हम कहीं पे यूज करेंगे जिससे हम settings.xml में वो आईडी से उसका क्रेडेंशियल्स फेच कर पाए। तो उसके फॉर्मेट्स भी दिए हुए नीचे में, किस तरीके से आप डाल सकते हो। ये एक फॉर्मेट है देखो, डिप्लॉयमेंट रेपो इज एन आईडी यूजर नेम पासवर्ड ऑफ द सर्वर, जो यहाँ पे डाला हुआ है। और यू कैन ऑल्सो यूज प्राइवेट की वे राइट, सर्वर आपने प्राइवेट की और उसका पासवर्ड जो प्राइवेट की जनरेट किया उसका पासवर्ड, तो ये इन दोनों वे से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मेरे को जो सेट डालना है वो एंट्री है मेरे को यहाँ पे ये वाला, मैं उठाता हूँ इसको कॉपी करता हूँ मैं, और मैं अनकमेंटेड पार्ट में डालूंगा, कमेंट में नहीं डालूंगा। कमेंट में वो इन्फॉर्मेशन के लिए उसने लिखा हुआ है। तो मैं अनकमेंटेड सर्वर टैग जहाँ पे ये राइट क्लोज हो रहा है, इंसर्ट मोड में गया, इसके नीचे में मैंने अपना ये पेस्ट किया। मुझे दो एंट्री डालनी है सर्वर टैग की सर्वर के अंदर में, क्यों, एक मेरा रहेगा रिलीज के लिए और एक मेरा रहेगा किसके लिए, स्नैपशॉट के लिए। ये मैं दो आईडीज डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और ये आईडी कैसे डिफाइन करूंगा राइट, यहाँ पे चेंज करने के लिए। तो ऑब्वियसली आई विल गो टू माय रेपो। मेरा गिटहब खुला हुआ है क्या, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं एक गिटहब खोल लेता हूँ ना, ठीक है। ये मेरा हेलो वर्ल्ड मेवन है। नाउ हियर इफ यू सी राइट इन pom.xml, अभी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग तो इंटरनल रैपो पे, बट मैं एक्चुअली इसको जाके कॉन्फ़िगर चेंज करने वाला हूँ राइट। इसको यूज करने वाला हूँ मैं, नेक्सस वाला जो था राइट। तो मैंने यहाँ पे अपडेटिंग नेक्सस एंट्री वाले में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाले टैग यूज करने वाला हूँ, रिपोजिटरी राइट। और इसमें देखो आईडी क्या है, रिलीजेस, एंड आईडी क्या है, स्नैपशॉट। तो pom.xml इस आईडी से राइट क्रेडेंशियल्स लेगा, और जो हमारा यूआरएल जो मैंने आपको दिखाया था नेक्सस में राइट,
जो सेटिंग्स में जो यूआरएल है वो यूआरएल के लिए ऑथेंटिकेशन का राइट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा, मैवन के settings.xml से। तो आई विल ऑब्वियसली कॉन्फ़िगर दिस रिलीजेस एंड स्नैपशॉट। तो मैं यहाँ से ये आईडी कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यूजर नेम मेरा है नेक्सस का, क्या यूजर नेम है, पासवर्ड, यूजर नेम इज admin एंड पासवर्ड इज admin123, ओके। जो डिफॉल्ट जो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो ये, उसके बाद आप जाके चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। और मेरा दूसरा स्नैपशॉट्स के लिए जो आईडी है, मैं वो यहाँ पे स्नैपशॉट्स वाला आईडी लूंगा। बेसिकली इट इज स्नैपशॉट्स, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे स्नैपशॉट्स आईडी, ठीक है। एंड हियर वी कैन पुट एडमिन एंड सेम admin। दैट्स इट, राइट। ये यही काम यहाँ पे करना है, इंटीग्रेशन फॉर ऑथेंटिकेशन, इसको सेव कर दिया, ठीक है। मेरा ये मैवन के साथ बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट सेटिंग ऑफ द ऑथेंटिकेशन, वो मैंने हैंडल कर लिया। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट, है ना। अभी मेरे को प्रोजेक्ट में चाहिए कि मैं नेक्सस, मेरा जॉब जब भी मैं कमिट करूँ वो नेक्सस पे राइट करे। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए pom.xml में। सो pom.xml ना, ये कीवर्ड जो वर्जन में जो कीवर्ड देख रहे हो स्नैपशॉट, ये देख रहे हो मैंने हाईलाइट किया है वर्जन का स्नैपशॉट। ये वर्जन इज मैप्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट राइट स्नैपशॉट रिपोजिटरी। अगर आपने वर्जन में स्नैपशॉट कीवर्ड यूज किया है तो किसको यूज करेगा, स्नैपशॉट रिपोजिटरी टैग को यूज करेगा। अगर आपने यहाँ पे रिलीज लिखा है तो किस टैग को यूज करेगा, रिपोजिटरी टैग को यूज करेगा, राइट। दिस इज हाउ राइट इंटरनली राइट यू कैन से इट हैज बीन राइट कोडेड और द मैपिंग हैज बीन ऑलरेडी कोडेड फॉर यू। तो अपने आप वो समझ जाएगा कि मुझे कौन सा आईडी उठाना है, ठीक है। तो दीपक ये ऑब्वियसली फिर से बोलो ना एक बार। अरे एक बार हाँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मान लो मैं सब स्नैपशॉट बिल्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वर्जन में क्या करूंगा, यहाँ पे स्नैपशॉट रखूंगा, क्योंकि मेरा इटरेटिव डेवलपमेंट चल रहा है मेरे कोड का, फीचर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, है ना। अभी रेडी नहीं है रिलीज के लिए, तो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ उसको, उसके उसमें बग आ रहे हैं फिक्स कर रहा हूँ, तो मेरा स्नैपशॉट मोड पे राइट डेवलपमेंट चल रहा है, तो हम उसको स्नैपशॉट बोलते हैं ना। अभी जब भी मैं स्नैपशॉट का आर्टिफैक्ट बिल्ड करूंगा, तो उसके जो आर्टिफैक्ट्स है कहाँ जाने चाहिए, नेक्सस में कहाँ जाने चाहिए, नेक्सस नेक्सस के कंपोनेंट में। अगर इफ आई क्लिक हियर तो मैवन स्नैपशॉट्स में जाने चाहिए, ना कि मैवन रिलीजेस में, राइट। इसके अंदर आने चाहिए, करेक्ट, सही है ना मैं जो बोल रहा यस यस हूँ, हाँ। यस दीपक। तो अभी ये जो pom.xml है राइट, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं इसको चूज करूं, ये वाला जो राइट यूआरएल है इसको चूज करूं स्नैपशॉट वाला, ना कि रिलीजेस को। तो ये कीवर्ड डेफिनेशन के कारण करता है। अगर आपने स्नैपशॉट डाला है तो वो कौन से टैग को चूज करेगा, स्नैपशॉट रिपोजिटरी टैग के अंदर की जो चीजें उसको यूज करेगा। तो ऑब्वियसली वो कौन सा यूआरएल यूज करेगा, स्नैपशॉट, मैवन स्नैपशॉट वाला यूआरएल यूज करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला कैपिटल रिलीज राइट इन वर्जन, तो कौन सा यूज करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में रिपोजिटरी टैग को यूज करेगा और ये रिलीज वाला यूआरएल यूज करेगा, मैवन रिलीजेस वाला, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यस अब वो हम करके देखेंगे भी, दोनों हम स्नैपशॉट भी बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, रिलीज भी बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग के अंदर जो ये जो चीजें हमें चाहिए मैं वो कॉपी कर दे रहा हूँ। हमें इंटरनल रेपो नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। इतना मैंने कॉपी कर लिया। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट पे और आई विल ऑल्सो लॉग इन टू माई जेंकिन्स, ठीक है। क्योंकि अभी क्या ट्रिगर होगा हमारा, हम कमिट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ट्रिगर होगा, ठीक है। सो आईपी चेंज होगा मेरा, इंस्टेंसेस
देख लेते हैं भाई, जेंकिंस चल रहा है ना। PS AUX पाइप ग्रैप जेंकिंस जेंकिंस चल तो रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आई कैन सी राइट 966 एंड 9672 इंस्टेंसेस। तो उसको हम रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, जेंकिंस सर्विस को। तो आई विल डू sudo, let me minimize it so that you can also see। तो मैं कर रहा हूँ sudo, पहले स्टॉप करूंगा ग्रेसफुल वे में, system ctl stop jenkins, ठीक है। अभी प्रोसेस देखेंगे तो ऑब्वियसली पूरा क्लीन हो गया, जेंकिंस का कुछ नहीं दिख रहा, एंड देन वी विल स्टार्ट। एंड वी विल सी प्रोसेस। फिर भी 2 आया क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? That is not good। If you see right 2501 and इसका भी पेड आपको देखने दो क्यों ऐसा बिहेवियर दिख रहा है। 2500 2501, ठीक है, ये 101 है इसका। हेडलेस इक्वल टू 2 जेंकिंस वेब कैश है जेंकिंस। इसको अगर रिफ्रेश करूं तो बंद करते हैं, फ्रेश पेज पे हिट करते हैं, नहीं चल रहा है ना। सो जेंकिंस के लॉग में जाके एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है। -100F, ये तो फोर्सफुल किल करूंगा मैं। रिकनेक्ट स्लेव 1। ओके, स्लेव भाई साहब बहुत परेशान कर रहे हैं, इसके कारण वो राइट स्लेव का भी वो प्रोसेस है ना वो दिखा रहा है, समझ रहे? तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो हमने उसको डिलीट कर देना चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, किल करते हैं उसको, ठीक है। समझ में आया क्या मतलब क्यों 2 प्रोसेस दिख रहे हैं? Yes. sudo kill, मैं दोनों को ही कर दूंगा 2500 2501 राइट एंड 2500, and then if I start Jenkins, नहीं आया है ना। it will take एक्टिव तो बता रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल स्टार्टिंग जेंकिंस ऑटोमेशन ये सेशन क्लोज्ड स्टार्ट एट गुड टाइम, ठीक है। तो प्रोसेस क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एक बार रिस्टार्ट में मार देते हैं। तो अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, ये वाला आ गया फाइनली, ठीक है, बट अगेन सेम प्रॉब्लम। वो इसको एक ही प्रोसेस को किल करता हूँ। ये उसी को ही किल कर दे रहा है ना। देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज हुई आज।
दीपक जरा वो लॉग देखना फिर से एक बार। लॉग में वही है, द प्रॉब्लम विद द लॉग इज दैट वो जो नोड है ना वो कुछ ज़्यादा प्रोसेस खा रहा है, उसके कारण वो हट कर देखो। अभी ये बता रहा है जेंकिन्स फुल अप एंड रनिंग, जो मैंने रीस्टार्ट किया जो भी है, राइट, जिसके कारण अभी अगर इसको मैं वापस से हिट करता हूँ, अभी भी नहीं ले रहा। मैंने आईपी प्रॉपर दिया है ना भाई, हाँ सर प्राइवेट इनफॉर्म 215 and I'm using the same one. Yes, I think that is also fine. मैं इसका एक चीज़ करता हूँ, देखते हैं। सी sudo su dash jenkins, okay, this minus ltr, इसमें कैशे इसको पहले मैं स्टॉप करूंगा जेंकिंस को। नहीं तो हम रीस्टार्ट वुड बी द सॉल्यूशन, आई एम प्रीटी श्योर, बट लेट्स सॉल्व राइट फ्रॉम द टर्मिनल फर्स्ट। तो हम लोग को पहले देखना है cd /var कैशे, इसमें हमारा जेंकिंस होगा। कंट्रोल सी sudo dash pwd cd /var कैशे jenkins war, ठीक है। आई विल रिमूव दिस, ओके। देखते हैं ब्रेक होने का तो हम वापस से इंस्टॉल कर लेंगे। पहले स्टॉप करूंगा मैं, कंट्रोल सिस्टम ctl राइट, स्टॉप jenkins rm minus rf star psauxy grep jenkins, okay, then I will start grep jenkins and ls minus ltr, यहाँ और आ गया अभी। क्यों भाई ऐसा ऐसा क्यों? दीपक उसका पोर्ट कुछ अलाउ करना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं, नहीं है? पोर्ट इज ऑलरेडी ओपन, राइट, 8080 पोर्ट है ना, वो हमने ओपन किया ही हुआ है ना। हमने कल भी तो जेंकिन्स एक्सेस किया था, देख लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड है ना, चेंज तो नहीं किया है। तो शिट, लेकिन वो पर्टिकुलर सोर्स के लिए हाँ, that is a problem and we were debugging here and there, right? So it is using my IP, ठीक है, and because of that my IP, right, it is just right using my IP which has been changed, right, जो काफी रिस्टार्ट नहीं किया था उसके कारण हुआ था। दीपक बेटा, वो जो अपना टर्मिनल है ना, टर्मिनल खोलना एक बार प्लीज। ओके, यस। यहाँ पे हम उसका फायरवॉल ऑफ करके चलेगा क्या? नहीं, ये चलेगा ही नहीं ना। ये इशू क्या है? इशू ये है सोर्स। यस यस गॉट। तो ये सोर्स का इशू क्या है? मैंने बोला मेरे इस आईपी को ही अलाउ करूंगा, और आज मैंने मान लो सिस्टम रिस्टार्ट किया मॉर्निंग पे ये वाला, ठीक है, ubuntu का, तो मेरा जो आईपी है, पब्लिक आईपी, वो चेंज हो गया मेरा, राइट, सिस्टम का। कल तक मैंने, राइट, अपना सिस्टम रिस्टार्ट ही नहीं किया था, राइट, एक दो वीक से तो ये चल रहा था, राइट। नहीं तो कल भी ये प्रॉब्लम आना चाहिए था अपने को, अगर मेरा आईपी चेंज हो जाता तो। दैट वाज द प्रॉब्लम, सो वी विल चेंज इट। सी silly thing, right, and took it to in different directions though, but that thing also is problematic part, right? Your node जो है, अगर आप वो बार बार ट्राई करते रहेगा, राइट, लॉन्च एजेंट, तो लोड करता है आपके सिस्टम को, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए सबको ही कर देता हूँ अलाउ, दैट हो गया। अभी ये दौड़ जाएगा, ठीक है, फॉर डेफिनेटली, एंड वी विल डू वन मोर थिंग कि दो प्रोसेस ना दिखे। अभी इसको हिट करते हैं,
तो आ गया। वाह, कहाँ कहाँ हम घूम गए, कैशे क्लीन कर दिया। ठीक है, साइन इन। परफेक्ट लॉगिन हो गया। मैं सबसे पहले वो नोट्स में जाके इसको उड़ा दूंगा। ठीक है, this one I have to remove manage Jenkins and go to nodes. बट Now दीपक delete. हमारा जो नोड है ना, वो अगर ऑफलाइन मोड में भी रहता है तो उसका प्रोसेस दिखाता है क्या वो? हाँ, वो ट्राई करते रहता है ऑफलाइन में भले ही है, बट वो आप देखोगे तो लॉग में आपको दिखा रहा होगा, राइट, उसने अटेम्प्ट मारा है, राइट, इसलिए दो प्रोसेस भी हमारा दिखा रहा है। सो आई विल गो एंड राइट बेसिकली डिलीट दिस, delete agent, and I want to check this. Just want to understand कि second जो process है ना, वो किस चीज के लिए चला। यूजर बिन डेमन, दैट इज ठीक है, जेंकिंस रन किया। जावा हेडलेस टू यूजर शेयर जावा जेंकिंस डॉट वॉर, तो ये जेंकिंस होम ये भी ले रहा है वेरलॉग बिट बाय। तो ठीक है, इसको मैं जस्ट एक बार देख रहा हूँ, ये मैं डिबग करूंगा बाद में कि क्यों दो प्रोसेस, एक ही प्रोसेस दिखना चाहिए, दो नहीं दिखना चाहिए। कैट पेस्ट, एक ही प्रोसेस है 3002। व्हाट इज दिस प्रोसेस आईडी देन? कैसे जेंकिंस, और यहाँ के कैशे का ये क्यों यूज कर रहा है वॉर वॉर? ठीक है, ये मैं आई विल राइट सर्च ऑन दैट कि ये बिहेवियर क्या है। ठीक है, नो दो वी हैड राइट क्लीनड अप दिस, राइट, मे बी अ रीस्टार्ट और समथिंग में, बट विल नॉट गो इनटू दैट। लेट्स गो टू आवर जॉब। ठीक है, तो हमारा डैशबोर्ड और ये हमारा जॉब है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें राइट कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ जरूरत है नहीं, ये जॉब वैसा का वैसा ही रहेगा। ओनली थिंग राइट, हमारा जो ये चेंज होगा कमिट, जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ pom.xml, ठीक है, जो इसका एंट्री था, तो मैं कॉपी करके एडिट करूँगा हिस्ट्री से, एंड आई विल अपडेट इट राइट विद द नेक्सस आईपी। तो चेंज वर्जन एंड नेक्सस आईपी जो भी मैंने किया, मैं ये वाला पार्ट उठा रहा हूँ रिपोजिटरी तक। ठीक है, दिस वन रिपोजिटरी, ठीक है, इतना कॉपी करना है मुझे और अपने pom.xml में जाके एडिट करना है। ठीक है, I will go to my project again and I will go to pom.xml, edit it, और सबसे पहले हम स्नैपशॉट बिल्ड करेंगे। वी कैन कीप 107 वर्जन फॉर नाउ। ठीक है, अभी और हम आपने जब कहाँ से कॉपी किया है सर वो? मैंने हिस्ट्री से, मैंने इसी pom.xml पहले भी चेंज किया है ना, पहले भी नेक्सस इंटीग्रेट किया है, तो अच्छा मैं अच्छा। उसके हिस्ट्री पे जाके वहां से वो उठाया मैंने। इट मींस तो अब आवर ओल्ड कमिट, राइट? हाँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट राइट। आप जब फॉर्क करोगे तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसकी हिस्ट्री के साथ मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, तो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग के अंदर ये डाल दिया। ओनली थिंग दैट आई नीड टू चेंज इज द राइट, कैन नॉट कीप मल्टीपल यूआरएल्स, ये मैं हटा रहा हूँ। डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे भी अभी मेरे को बस क्या करना है, आईपी चेंज करना है। मेरा नेक्सस का जो आईपी है वो ये है, बाकी एपी जो यूआरएल है एपीआई जो हिट करता है वो सेम सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कंट्रोल पी और इसको भी चेंज कर देता हूँ अभी, लेकिन जाएगा किस पे, स्नैपशॉट पे जाएगा, क्योंकि हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या है, स्नैपशॉट, और हमारा भी जो वर्जन बिल्ड होगा वहाँ पे 1.0.7 के लिए होगा। ठीक है, तो डबल कोलन हुआ, देखो डबल कोलन। हाँ, अगर ये डबल कोलन है तो फट जाता। ठीक है, अगर हम हटा देंगे तो हमारे जॉब में हमें पता चलता कि टाइम आउट हुआ, राइट, वॉट एवर रीजन, ये आपका एड्रेस यूआरएल गलत है, राइट, उस तरह से एरर आता। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है,
हमारा पोल SCM ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है हमारा, राइट, जेंकिंस में. सो वी विल सी, राइट, ऑन आवर कमिट जॉब शुड गेट ट्रिगर्ड. ठीक है, तो हम इसको कमिट करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं इंटीग्रेटिंग विद नेक्सस. ठीक है, नाउ लेट्स कमिट दिस. वी कमिट गया. अभी लेट्स सर मेरे को सर मुझे बस मतलब एक वो डाउट आ रहा है कि कौन सी चीज उठा के कॉपी करके कहाँ. हाँ, तो कल जो माई आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो भी चीजें बनी थी, माई आर्टिफैक्ट्स फोल्डर दिखाया था मैंने आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में हमने एक लोकल, तो उसमें जैसे जैसे उसमें जो कंटेंट आते हैं वो सारी की सारी डालेगा. आपका जार फाइल, राइट, जिस जिस चीजों से वो बिल्ड हुआ, राइट, वो सारी चीजें. ठीक है, अभी लेट्स वेट. कमिट है, पोल SCM ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ट्रिगर हो गया देखो अपने आप. ठीक है, नाउ लेट इट रन. हम इसके कंसोल आउटपुट में जाके देख सकते हैं क्या क्या कर रहा है ये. ठीक है, क्लीन डिप्लॉय फेज पे आ गया है ये, फेच कर लिया है, राइट, बिल्ड कर रहा है, राइट, टेस्ट किया है इसने. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, इट इज, राइट, एक्चुअली इंटीग्रेटिंग, राइट, विद द दिस URL, राइट. देखो ये हमारा नेक्सस का URL है, राइट. इस पे ये अपलोड कर रहा है स्नैपशॉट्स ना, अपलोडिंग टू स्नैपशॉट्स. क्या डाल रहा है देखो, टाइम स्टैम्प के साथ जार डाल रहा है ना. और जो पॉम जो पॉम यूज किया है, जो मेटा डेटा है, राइट, वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स है, राइट, वो क्या कर रहा है वहां पे डाल रहा है. हमारा बिल्ड सक्सेस हुआ. अभी ये चीज अगर हम इधर आते हैं, कंपोनेंट में जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप मैवन स्नैपशॉट में जाओगे, यू विल सी, राइट, देखो, हेलो वर्ल्ड मैवन ग्रुप कॉन्टेस्ट, और कौन सा वर्जन 1.07. अब इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको ये सारे कंटेंट जो उसने, राइट, वहां से अपलोड किए. तो आपका जो जार फाइल है वो भी आ गया घर में, राइट, चेकसम वाला जार फाइल, राइट, SHA वाला, जो भी ये आर्टिफैक्ट्स कर देता है. और अगर अपने कोई डिपेंडेंसीज हैं, राइट, जो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में है, यूज हुए हैं, राइट, वो भी वो क्या करेगा यहाँ पे बिल्ड कहता है आर्टिफैक्ट्स को डालेगा. जो वो यूज करके उसने बना के डाला है, वो सारे सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे इसमें आ जाएंगे. this one clear, और इसमें caution है, so that we can go ahead and, right, do with the release one also. एक बार release के लिए भी हम build करके देखेंगे कि release में आ रहा है कि form.xml एक मिनट देखना था. okay. हाँ सर, वो फिर से एक बार देखना चाहते हैं ये लो कि वो form.xml. स्नैपशॉट के वही वर्जन की क्यों गया. यही जाना चाहिए ना. हाँ वही जाना चाहिए, लेकिन आपने वो बताया था लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आया था. कैसे कॉल होता है ये. देखो, वर्जन में क्या है, स्नैपशॉट, करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में कौन सा टैग होता है जब स्नैपशॉट टैग वहां पे डिफाइन होता है, किसको टैग को रिफर करता है, स्नैपशॉट रिपोजिटरी, नॉट रिपोजिटरी. उसने किसको रिफर किया, स्नैपशॉट रिपोजिटरी को. फिर उसने आईडी लिया स्नैपशॉट, मैवन के कॉन्फ़िगरेशन में गया, इस आईडी के लिए इस सर्वर से बात करने के लिए मेरे को यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, ऑथेंटिकेशन वहां से उठाया और इस URL के API में जाके उसने डंप कर दिया. क्लियर. हम अगर रिलीज अगर करते तो ये रिपोजिटरी टैग में जाता था, राइट. बिल्कुल रिपोजिटरी टैग में जाएगा, और वो करेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे इसी 1.07 का स्नैपशॉट के लिए एक रिलीज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, स्नैपशॉट से क्या, रिलीज. तो हमको ये एवरी टाइम करना पड़ेगा क्या, अगर रिलीज करना है तो रिलीज कीवर्ड, स्नैपशॉट करना है तो स्नैपशॉट. सी ऑब्वियसली, अगर आप डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, अगर आपने गिट वर्कफ्लो का लेक्चर याद किया होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स के फीचर ब्रांचेस बनते हैं, है ना. जब फीचर ब्रांचेस बन रहे हैं तो फीचर ब्रांचेस में आप किस पे काम कर रहे हो, स्नैपशॉट पे काम कर रहे हो. तब तक आप स्नैपशॉट बनाते जाओगे, राइट. जब फीचर रेडी हो जाएगा और जब आप रिलीज ब्रांच पे लेके जाओगे, तो कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा है, प्रोडक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहा है, राइट. तो दोनों के आर्टिफैक्ट में फर्क है ना, राइट. एक है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऑब्वियसली आपको चेंज तो करना पड़ेगा कि आप रिलीज बना रहे हो कि स्नैपशॉट बना रहे हो, राइट. तो अभी हम ये प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं. अभी हम पता है हमारा कोड फ्रीज हो गया, सब कुछ हो गया. नाउ वी आर, राइट, एक्चुअली बिल्डिंग अ रिलीज आर्टिफैक्ट्स, जो जिसपे जो टेस्टिंग होना है वो होगा आर्टिफैक्ट्स बनने के बाद. बट ये जो रिलीज आर्टिफैक्ट है ये अभी रेडी हो रहा है कहाँ पे, प्रोडक्शन में जाने के लिए. ठीक है,
तो अभी मैंने ये रिलीज डाल दिया और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि रिलीज में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो Maven releases इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको कमिट करते हैं। ठीक है, कमिट किया है, यहाँ पे आते हैं और इस प्रोजेक्ट में देखते हैं अभी, राइट, एक फिफ्थ राइट ट्रिगर होना चाहिए। देखो ट्रिगर तो हो गया है। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, बट इस बार आप देखोगे तो ये बेसिकली रिलीज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। नाउ इफ यू सी राइट, देखो Maven रिलीजेस उठा लिया, राइट, और उसमें टाइम स्टैम्प भी नहीं है। ठीक है, और इसने रिलीज पे किया बिकॉज ऑफ दैट, राइट, वर्जन में जो कीवर्ड यूज किया रिलीज। अभी इसको अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे आपके नेक्सस पे Maven रिलीजेस में, ठीक है, देखो 1.07 डैश रिलीज, राइट, विदाउट टाइम स्टैम्प। इसके अंदर आपको इसके आर्टिफैक्ट्स जो भी है वो भी, ठीक है। क्लियर? सर एक बार वो सेटिंग्स वाला जो फाइल था नेक्सस हाँ पे, हाँ, वो तो मैं इशू वहां पर जो अनकमेंट में जो ऐड किया था। हाँ मतलब सर्वर स्टैक के अंदर जो सर्वर ऐड किया था, राइट, यस यूजर शेयर Maven, ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ, ठीक है, इसके अंदर सेटिंग्स डॉट XML फाइल, राइट, vi ये सेटिंग, एटीसी कॉन्फ को लिंक करता है। हाँ etc Maven, जो कॉन फोल्डर है वो etc Maven को, ठीक है। इसमें हमारा सर्वर्स टैग है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे सर्वर टैग के अंदर में ये दो सर्वर टैग डाले, दो सर्वर, ठीक है, एक रिलीजेस के लिए और एक स्नैपशॉट के लिए। इसको इसको सर ऊपर से कॉपी किया था ना? हाँ, मैंने एग्जाम्पल से कॉपी किया, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, ओके राइट, ये वाला जो डिप्लॉयमेंट रेपो वाला जो एग्जाम्पल है, राइट, उसको अनकमेंट से उठाया और राइट कमेंटेड से उठाया और अनकमेंट पार्ट पे डाला, मतलब सर्वर स्टैक के अंदर। ठीक है, ठीक है, यस। ओके गाइज, ये ट्राई जरूर करना, राइट, इंटीग्रेशन एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट है, राइट, और ये चीजें करोगे तो यू आर अवेयर एंड बेसिकली दिस इज व्हाट, राइट, इंटरव्यूअर वुड आल्सो आस्क समटाइम, राइट, हाउ यू हैव इंटीग्रेटेड योर राइट Nexus repository, right, if you had worked, you have written right Nexus in your resume, तो सिमिलर वे में बाकी रिमोट के लिए भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो JFrog का भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, राइट। दीपक, ये तो हमने अभी जो नेक्सस पे देखा है वो तो हमने हाँ। वो ब्राउजर के बेस पे देखा है। हाँ। अगर हमको ये सेम चीज देखना है टर्मिनल के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो किधर टर्मिनल जाता है के डेटा, क्या यस ऑब्वियसली, तो आपके जो Nexus का जो भी डाटा है फोल्डर, उसके अंदर ये सब चीजें जनरेट हो रही हैं, राइट, बट वी नेवर यूज राइट Nexus राइट फ्रॉम द बैकएंड, मतलब बैकएंड से नहीं करते, API से करते हैं, राइट। यस यस। तो आप वो रेफर करोगे, बट हाँ ऑब्वियसली आपको डाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो वहाँ के सर्वर पे गया हुआ है, तो UI मुझे में। एक बार वो चीज देखना था कि इसका सोर्स कोड किधर जाता है और क्लास फाइल किधर जाता है, दैट्स इसलिए पूछ रहा हूँ। किसका सोर्स कोड, क्लास फाइल वहाँ पे कुछ नहीं जाएगा Nexus पे, वो ठीक आपके है। कहाँ पे रहेगा, जेंकिन सर्वर पे ही रहेगा, यहाँ पे। वो तो आपके जेंकिंस के वर्कस्पेस में रहेगा ना। यस 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 सर, हाँ, यस यस। वेयर लिव जेंकिंस, वो तो जनरेट करना है, उसका काम क्या, आर्टिफैक्ट जनरेट करना है ना, कोड से। जार फैल जाएगा, राइट? हाँ, सिर्फ सिर्फ जार जार जाएगा। जाएगा और जो आर्टिफैक्ट्स राइट सपोर्टिंग जार्स रहेंगे, जो भी रहेगा, राइट, वो सब जाएगा। यस। इसके अंदर वर्कस्पेस के अंदर आपको प्रोजेक्ट रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर देखो सोर्स है आपका,
यस, और टारगेट में हमारा क्लास 5। हाँ, टारगेट आफ्टर कंपाइलिंग, राइट, जब Yes. कंपाइल फेज उसमें था। ओके यस, ओके, आई थिंक अभी हमारे पास स्टिल थोड़ा सा टाइम तो है। सो अब मैं पाइपलाइन आज स्टार्ट नहीं करना चाहता, राइट। तो दो ऐसी चीजें नहीं, वी कैन डू अ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट दो, राइट। तो जो अपाचे हम एक फ्रंट एंड कोड, राइट, अपाचे पे हम डिप्लॉय करेंगे, राइट, यूजिंग अ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट यूजिंग अ प्लगइन कॉल्ड डिप्लॉय टू कंटेनर प्लगइन। So basically, this project, right, is very popular, right, in terms of organization where they use it, deploy to container plugin, right. जैसे आपका कोई इंट्रानेट पोर्टल है या कुछ ऐसा है जो आप, राइट, मैनेज कर रहे हो और वो किसी वेब कंटेनर पे लॉन्च्ड है, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने, जैसे मेनली कोई अपाचे टॉमकैट यूज करेगा, कोई कुछ और यूज करेगा, तो हाउ यू विल, राइट, do the rolling upgrades and, right, management of deployment, right, in there after generating, right, compiled, right, front end code like war, right? तो वो आप करेंगे तो कैसे उसको करेंगे। तो मैं पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, तो पाइपलाइन में हमें दो करना है, तो आई विल नॉट डू पाइपलाइन राइट नाउ, आई एम गोइंग डायरेक्टली टू फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। पाइपलाइन का डिस्कशन हम नेक्स्ट, राइट, लेक्चर पे करेंगे। तो for achieving that, again we need one more instance, right, where Jenkins, right, will talk to, so that would be a different server called Apache Tomcat, and we need to know, right, how to configure Apache Tomcat. Okay, Apache Tomcat simple यही नहीं है कि install कर दिया और आपने access कर लिया, but providing access, right, or managing application, right, configuration is also very important. So we will be doing that, and then we will be integrating, right, with a freestyle project. तो पहले हम Apache Tomcat installation करते हैं, ठीक है। So I am going to use, I think, देखते हैं Nexus वाले मशीन को हम, राइट, यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम Apache Tomcat भी रन करते हैं। दो Nexus को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसको स्टॉप कर लेंगे, राइट, जो भी है। और सर मैं भी, बेसिकली ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपने बताया फ्री हाँ, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्या इसमें चीज? मतलब जो अभी नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं हम्म पाइपलाइन प्रोजेक्ट फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, हम्म। इसमें बेसिकली क्या वर्क क्या होगा उसमें? देखो, पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी हम नहीं कर रहे, हम लोग जा रहे हैं सीधा फ्री स्टाइल पे, ठीक है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट में जो मैं बोल रहा था, पाइपलाइन प्रोजेक्ट में जनरली ये होगा, मैं आपको बस एक ग्लैंस दे देता हूँ। हमें पहले डिस्कस करना है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट है क्या। पाइपलाइन वर्सेस स्क्रिप्टेड पाइपलाइन हमें डिस्कस करना है, उनमें क्या, राइट, डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या अलग है। पाइपलाइन इज अ वेरी, राइट, मॉडर्न वे ऑफ, राइट, क्रिएटिंग योर डिलीवरी, राइट, पाइपलाइन। तो अगर आप देखोगे यही सेम प्रोजेक्ट में मैंने इसको पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक ना जेंकिंस फाइल क्रिएट किया हुआ है यूनिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो एक पाइपलाइन कोड लिखा हुआ है, विच इज नथिंग बट अ ग्रूवी इज अ डीएसएल। तो इसमें मैंने स्टेजेस डिफाइन किया। अभी आपने मैवन से जो किया वही चीज मैं पाइपलाइन से कर रहा हूँ, बट इसमें मैं स्टेजेस डिफाइन कर रहा हूँ। स्टेजेस के अंदर बोल रहा हूँ एक बिल्ड स्टेज है, राइट, जहाँ पे मैं सिर्फ कंपाइल करूंगा कोड को, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग पाइपलाइन, मतलब आपको बहुत ही यू कैन से विजुअल वे में वो दिखाएगा कि भी बिल्ड फेज कॉल हुआ है, फिर टेस्ट फेज कॉल हुआ है, फिर डिप्लॉय। नाउ इसको ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। आफ्टर, राइट, डूइंग डिप्लॉय यू कैन डू एक्चुअल, राइट, कोड क्वालिटी चेक, राइट। एक स्टेज बना सकते हो कोड क्वालिटी चेक का, उसमें सोनार क्यूब स्कैनर इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर आप एक और स्टेज बना सकते हो डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे आप एंसिबल यूज करके, राइट, उसको, राइट, किसी रिमोट सर्वर पे एन नंबर ऑफ रिमोट सर्वर पे डिप्लॉय करना है, वो कर सकते हो। तो ये जो चीज है, ये जो स्टेजेस है, राइट, इनको समझना, ये क्या चीजें हैं, कैसे कॉल होती है, राइट। एजेंट क्या है, कितने तरह के एजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एजेंट आपका हो सकता है नोड, एजेंट आपका हो सकता है डॉकर, राइट। एजेंट आपका हो सकता है क्या बोल सकते हैं, एनी, तो हर कोई है। तो देर आर मोर, देर इज समथिंग कॉल्ड बेसिकली, राइट, इन टर्म्स ऑफ नोड, जैसे आपका स्लेव है, राइट, लेबलिंग के साथ कि एक नोड है और वो नोड में कौन से, राइट, लेवल पे रन होगा। तो ये जो चीजें इनको एजेंट में डिफाइन करता है। तो एजेंट बता रहा है कि ये जो चीजें मैं स्टेजेस रन करूंगा, कहाँ रन करूंगा, तो मैं ये एजेंट स्पेसिफिक टू स्टेज भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमको, राइट, वहाँ पे समझनी है। और पाइपलाइन स्क्रिप्टेड पाइपलाइन से कैसे डिफरेंट है, तो वहाँ पे आप देखोगे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन ओल्डर वे ऑफ, राइट, क्रिएटिंग पाइपलाइन। वहाँ पे पाइपलाइन की जगह कीवर्ड नोड यूज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चीजें, कौन सी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो सब हमें डिस्कस करना है, राइट, इन डेप्थ। क्योंकि जनरली अब जब जेंकिंस का इंटरव्यू होता है, तो जनरली आपसे पूछ लेंगे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में काम किया है क्या,
देन हाउ यू विल आंसर अगर आपने किया ही नहीं, आपने सिंपल यूआई से जॉब बना के किया हुआ है। तो दोज थिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं उस फेज पे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जेंकिंस अभी ये जेंकिंस पाइपलाइन आपको नहीं अभी करवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा राइट, विद प्रॉपर टाइम। तो अभी जो हो सकता है वो मैं करा रहा हूँ। तो उसमें है हमारा एक फ्रंट एंड कोड है हमारा, जीएसपी का प्रोजेक्ट रहेगा राइट, उसका फ्रंट एंड कोड रहेगा और हमको अपाचे में उसको डिप्लॉय करना है, अपाचे टॉमकेट जो कि एक रिमोट सर्वर है। ठीक है, तो कैसे हम डिप्लॉय करेंगे एक रिमोट सर्वर पे राइट अपना फ्रंट एंड कोड, तो वो मेरे को करवाना है। राजीव समझा? यस यस। ओके, तो उसके लिए जो हमारा रैपो है राइट, वो ये है। और वही प्रोजेक्ट हम राइट पाइपलाइन में भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे, और एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट है सेम जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये टॉमकेट डॉकर वर्क। इसका भी मेरे पास जेंकिंस फाइल का कन्वर्जन प्रोजेक्ट है जिसमें हम डॉकर से करेंगे राइट, तो डॉकराइज कंटेनर के अंदर बिल्ड करके करेंगे। तो ये भी हमारा लैब है पाइपलाइन, जेंकिंस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। लेकिन यही प्रोजेक्ट अभी मैं फ्री स्टाइल में करूंगा, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हम अपाचे टॉमकेट अलग से सेट करेंगे। यहाँ पे तो हमने डॉकर से टॉमकेट लिया राइट, बट यहाँ पे अभी हम अपना खुद का एक सर्वर में एक अपाचे टॉमकेट इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और अपना फ्रंट एंड कोड जो कि सोर्स मेन वेब में एक index.jsp कोड है, जिसमें हमने ये जो पेज है राइट, जब भी मैं एक्सेस करूंगा अपाचे टॉमकेट को तो ये पेज खुलना चाहिए राइट। तो दिस इज द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली एट द एंड अगर आप इसका pom.xml देखोगे तो वी आर क्रिएटिंग व्हाट, अ वॉर फाइल राइट, नॉट जार। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हम एक वॉर फाइल बना रहे हैं, और इसका जो आर्टिफैक्ट आईडी है राइट, जो एप्लीकेशन नेम है वो जेंकिंस वॉर 1 राइट, वर्जन डॉट वॉर ऐसे बनेगा। और इसमें हमने एक चीज यूज किया है, बिल्ड फाइनल नेम। तो वो क्या करता है, फाइनल नेम जो जेंकिंस वॉर है, जो भी आपका जो वर्जन वाला है आप तो मैनेज करते हो वर्जनिंग के लिए राइट, बट एक्चुअली जब डिप्लॉय करते हो प्रोडक्शन में तो आप प्रॉपर नेम से डालते हो। तो यू कैन यूज दिस बिल्ड टैग राइट विद अ फाइनल नेम टू रीनेम द वर्जनड वॉर फाइल टू अ स्पेसिफिक वॉर फाइल, जैसे जेंकिंस वॉर डॉट वॉर पे करके वो डिप्लॉय करेगा। बट आपका आर्टिफैक्ट सर्वर्स के लिए तो आप वर्जन रखोगे राइट, लाइक जेंकिंस वॉर वॉट एवर नेम आई हैव गिवन राइट, डैश द वर्जन डॉट एक्सटेंशन दैट इज पैकेजिंग। तो इस तरह से वो आर्टिफैक्ट में जाता है। तो दिस इज द राइट थॉट। ठीक है, तो अभी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपाचे टॉमकेट सेटअप करना है। ठीक, उसका इंस्टॉलेशन उसको कैसे करते हैं दैट आई एम गोइंग टू राइट डू। तो मैं नेक्सस सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरा नेक्सस सर्वर में जो ये नेक्सस है उसको बंद करना है मुझे, पाइप ग्रैप नेक्सस। ठीक है, मैं इसको अभी किल कर देता हूँ, sudo किल -, या तो मैं इसको स्टॉप ही करता हूँ ग्रेसफुली वे में, देखते हैं उससे हो जाए तो अच्छा है। और या तो मैंने इसको बैकग्राउंड में रन किया है ना, जॉब्स नहीं है परफेक्ट। तो फिर cd डॉट 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 बिन sudo डॉट स्लैश नेक्सस स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्सस बंद हो गया है तो प्रोसेस में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं यहाँ पे अपने होम डायरेक्टरी में जाऊँगा यूबुंटू में। ठीक है, होम यूबुंटू, और यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू डू माय अपाचे टॉमकेट का इंस्टॉलेशन एंड राइट उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है। तो अपाचे टॉमकेट कहाँ से लेकर आएंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल, यहाँ पे जाके अपाचे टॉमकेट इंडेक्स, जो भी जिस वर्जन के लिए मैं 8 के लिए इंडेक्स देख रहा हूँ, तो मैं इंडेक्स ऑफ दिस टॉमकेट टॉमकेट 8 पे गया। यहाँ पे आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, यू कैन चूज एनी वन राइट, वी कैन चूज द लेटेस्ट वन राइट। तो मल्टीपल पे मैंने ट्राई किया ही हुआ है, तो लेटेस्ट पे भी ट्राई किया, तो हम ये लेटेस्ट सबसे लास्ट 8.5.9 राइट ये उठा लेते हैं। इसका कॉपी लिंक एंड लेट्स गो टू दैट सर्वर, और यहाँ पे wget मार लेते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग tar.gz फाइल, नो 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 नॉट दिस, इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, 8.5.9 इसके अंदर गए, इसके अंदर बिन, इस बिन के अंदर हमारा tar.gz फाइल है, तो स्पेसिफिकली 8.9 MB वाला जो फाइल है ये वाला। ठीक है, इसको हमें राइट अपने सर्वर पे लेके जाना है। तो राइट क्लिक, कॉपी लिंक एंड लेट्स गो टू आवर सर्वर। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो ये देखो tar.gz फाइल का लिंक लेकर आ गया, ये डाउनलोड हो जाएगा इधर। ठीक है, मेरे सर्वर पे आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, अनटार करूँगा ऑब्वियसली, टार
माइनस XVZF एंड अपाचे टॉमकैट। मेरे पास फाइल आ गई यहाँ पे अपाचे, ठीक है, अपाचे टॉमकैट। अब इसके अंदर मैं अगर जाऊँ, अपाचे टॉमकैट बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे चलता है? 8080। 8080, ठीक है ना। हाँ, कहाँ पे होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? कौन से फाइल में होता है? यहाँ पे अपाचे टॉमकैट के अंदर वर्क है, लॉग्स है, वेब एप्स है, कॉन्फ है ना? किस में होगा? कॉन्फ में कौन सी फाइल? सर्वर डॉट एक्सएमएल, ठीक है। सर्वर डॉट एक्सएमएल में 3 पोर्ट्स होते हैं। एक होता है शटडाउन पोर्ट, ठीक है, और एक होता है आपका क्या, HTTP एक्सेस पोर्ट ना, जिससे आप ब्राउजर पे एक्सेस करते हो, और एक होता है आपका AJP पोर्ट। AJP पोर्ट होता है बाइंडिंग के लिए, अगर दो एप्लीकेशन आपस में बात करना है। तो जनरली आप देखना, जनरली आप डील करते हो राइट आपके कनेक्टर पोर्ट, HTTP कनेक्टर पोर्ट, राइट, जो बाय डिफॉल्ट 8080 है। और एक इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू, अगर आपके एक इंस्टेंस में मल्टीपल अपाचे टॉमकैट चल रहे हैं, ठीक है, आपने सबके कनेक्टर पोर्ट अलग अलग रखे हैं, मल्टीपल इंस्टेंस है तो अलग अलग पोर्ट पे आप एक्सेस करोगे। लेकिन अगर आपने शटडाउन पोर्ट कॉमन रखा है, देन इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा? जब आप बंद करते हो तो वो शटडाउन पोर्ट को चेक करता है, और हर किसी का अगर शटडाउन पोर्ट कॉमन है तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट। तो आपको हमेशा, अगर मल्टीपल इंस्टेंस अपाचे टॉमकैट डाल रहे हो एक इंस्टेंस में, तो हर किसी का शटडाउन पोर्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा रेस्पेक्ट टू द कनेक्टर पोर्ट। AGP पोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज राइट इम्पॉर्टेंट। और अपाचे का जो भी लॉग्स है, एप्लीकेशन जो आप डालोगे वेब एप्स के अंदर, राइट, डिप्लॉय होगा वेब एप्स के अंदर, जो मैं जेंकिंस वार डॉट वार फाइल बनाऊंगा, वो कहाँ पे डिप्लॉय करना है मुझे? वेब एप्स के अंदर, राइट। तो उसका जो एप्लीकेशन और ये अपाचे टॉमकैट का लॉग्स फोल्डर के अंदर जनरेट होता है। इसके अंदर एक कैटेलिना डॉट आउट करके फाइल बनती है, उसके अंदर आपके एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर या जो भी एक्सेस है, राइट, उस तरह के लॉग्स आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो ये वर्क है ये कैशे है अपाचे टॉमकैट का। तो कई बार क्या होता है, और राइट इट्स गुड टू नो आल्सो, कि कई बार आपने चेंजेस तो एप्लीकेशन के नए डाल दिए उसमें, बट जब आप एक्सेस कर रहे हो तो पुरानी चीजें दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्रेसफुली शट डाउन करना चाहिए आपका अपाचे टॉमकैट, और वर्क जो डायरेक्टरी उसको आप रिमूव कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, और वापस से स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट इट विल लुक फॉर द फ्रेश स्टफ, राइट, वो कैशे से नहीं उठा रहा है। तो सम टाइम अगर ऐसा हो तो वर्क डायरेक्टरी को आप रिमूव करके वापस से अपाचे टॉमकैट स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, जो भी है अपाचे का, वो कहाँ पे पड़ा है? बिन के अंदर, राइट, CD बिन। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरा स्टार्टअप डॉट sh स्क्रिप्ट है, और अगर विंडोज में रन करोगे तो बैट स्क्रिप्ट है, स्टार्टअप डॉट बैट। और ये स्टार्टअप डॉट sh किसको कॉल करता है? कैटिलिना डॉट sh को करता है, जो कि आपके टॉमकैट का करता धरता है, राइट। इसके अंदर आप अपना इन्वायरमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स भी, जावा होम क्या यूज करना है, या एप्लीकेशन स्पेसिफिक अगर कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप इसके अंदर कर सकते हो कैटिलिना डॉट sh। बट एट द एंड दिस startup.sh calls catalina.sh। तो अभी मैं माय बैड, मैं अभी रन करता हूँ startup.sh, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। इसका भी प्रीरिक्विजिट क्या है? जावा होना चाहिए। हमने जावा इंस्टॉल किया था नेक्सस के लिए, तो ऑब्वियसली उसने एरर नहीं दिया, राइट। नहीं तो आपको पहले जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। JDK 1.8 वर्जन कोई भी डाल लो, JDK 8 स्पेसिफिकली यूज से। तो अभी आपने आपका टॉमकैट तो स्टार्ट हो गया। अभी हाउ यू कैन चेक वेदर स्टार्टेड नॉट। तो टेल माइनस आप जो भी फ्लैग यूज करके जो भी लाइंस डालना है डाल के, कहाँ पे लॉग्स में कैटलिना डॉट आउट को चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे चला कि नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टार्टअप सर्वर स्टार्टअप आ रहा है लास्ट, राइट, इसका मतलब आपका चल गया है। और दूसरा आप प्रोसेस चेक कर सकते हो, तो ये अपाचे टॉमकैट का आपको यहाँ पे प्रोसेस भी दिख जाएगा, मतलब आपका चल गया है। अभी मेरा पोर्ट मेरे को वाइट लिस्ट करना है इसका, ठीक है। सो दिस इज माय नेक्सस इंस्टेंस। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है SG08, यहाँ पे कौन सा है? ये वाला है 08, राइट। इसमें मैं 8080 पोर्ट को भी डाल देता हूँ, 18 बाउंड रूल्स। ये सेव रूल्स हो गया। अभी मैं एक्सेस करता हूँ अपने राइट अपाचे टॉमकैट को। यहाँ से उठा लेते हैं और इसको 8080 पे एक्सेस करते हैं।
तो अब देख रहे हो मैं अपाचे टॉमकेट के पेज पे तो आ गया, लेकिन अगर मैं अगर एक्चुअली देखूँ, अगर एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मैनेजर ऐप में, तो ये मुझे एरर दे देगा, है ना, एक्सेस डिनाइड। अब इसको कैसे फिक्स करें? तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा आपके सर्वर पे। मैं इसको शट डाउन करता हूँ पहले, ./shutdown.sh। तो इसका जो चेंज जहाँ पे आपको करना है वो है आपको मैनेजर के लिए, आपके वेब एप्स के अंदर मैनेजर में context डॉट एक्सएमएल है, जहाँ पे डेफिनेशन है कि सिक्योरिटी के लिए अपाचे ने बोला है कि जो लोकल होस्ट है जहाँ पे इंस्टॉल है वही चेंज कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करना है और हमें अलाउ करना है कि यूजर हु इज एक्सेसिंग फ्रॉम हिज मशीन लैपटॉप कैन आल्सो मैनेज दैट एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा मेरे CD और VI ही करता हूँ मैं, सीधा VI ./web apps, इसके अंदर मैनेजर, मैनेजर के अंदर मेटा INF, इसके अंदर ये context.xml, राइट। ये पाथ में रहता है वेब एप्स के अंदर, मैनेजर के अंदर, मेटा INF के अंदर context.xml। यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे देखो जो अलाउ है वॉल्व, नीचे में, रिमोट एड्रेस कौन उसको यूज करता है, तो उसने क्या दिखा है 127 वाले रेंज के IP को अलाउ किया है, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया है, मतलब लोकल कोई किया। तो मैं चाहता हूँ नहीं कोई भी करे। तो वेरी क्रूड वे ऑफ गिविंग एक्सेस इज व्हाट अलाउइंग एवरीथिंग, तो वो क्या डाल सकते हैं, कैरेट, माय बैड, एस्केप, अंडू, थोड़ा आराम से करना, मतलब इधर उधर कुछ और हट गया तो फिर यू हैव टू डिबग, कि क्या आपने चेंज किया है। कैरेट $, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, कुछ भी आ जाए मैं उसको मैच करूंगा, बट स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रेंज ऑफ IP, है ना। तो जो IP आपको डालना है, वो आप पाइप सेपरेटेड IP वहाँ पे डाल सकते हो अलाउ में, तो वो उन्हीं को अलाउ करेगा, ठीक है। जो भी रिमोट से मैनेज करना चाहता है अपने मशीन से। तो मैंने अभी सबको अलाउ कर दिया है। तो ये एक चेंज है। अभी ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, बट अभी वापस से नए नए चैलेंजेस जो है वो देखते हैं। startup.sh किया, मेरा ये स्टार्ट हो गया। अभी मैं वापस से एक्सेस करता हूँ। अभी मैं मैनेजर ऐप पे क्लिक करूंगा। हाँ, इट इज प्रॉम्प्टिंग मी यूजर नेम पासवर्ड, मुझे एरर नहीं दे रहा है, बट वो ऑथेंटिकेशन बोल रहा है भाई कि इसको करने के लिए यू शुड हैव अ यूजर नेम पासवर्ड। वो मेरे पास अभी है नहीं। मैं ओके करूंगा, या कैंसिल करूंगा। मुझे बोल रहा है कि आपको ये सब सेट करना है, आपका रोल नेम और उस रोल नेम को यूजर नेम पासवर्ड को अलाउ करना है, जैसे मैनेजर को ही, ये। तो so मैनेजर कोई भी आप डाल सकते हो, बट देर आर अदर थिंग, स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग यू कैन गिव। तो वो मैंने अपने पेस्ट बिन URL पे रखा हुआ है। सो मैं वो उठा के कॉन्फ़िगर करूंगा। वो कहाँ करता हूँ वो पाथ भी बता देता हूँ। pastebin.com B0 ये रहा। तो एक फाइल है आपके कॉन्फ में tomcat_user.xml, उसके अंदर आपको ये एंट्री डालनी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और आई विल गो टू vi./conf, उसके अंदर tomcat_user.xml। बट इससे पहले आई शुड डू अ शटडाउन, मेकिंग चेंज, ग्रेसफुल शटडाउन इज ऑलवेज गुड। आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर, टू डू अ ग्रेसफुल शटडाउन एंड देन मेक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। तो अभी मैं tomcat_user.xml गया, इस tomcat यूजर टैग में, जो tomcat यूजर टैग है ऊपर में, ठीक है, इसमें आई एम गोइंग टू ऐड दैट एंट्री, so I added this, rules, my bad. So just I will give an indentation so that we can understand properly. And this is user information, तो कौन सा यूजर बनाया हमने, tomcat यूजर बनाया, उसका पासवर्ड आप खुद भी कुछ भी सेट कर सकते हो। Okay, तो अब कुछ भी इसको सेट कर सकते हो। आई एम ऑडिबल गाइस टू एवरीवन?
Yeah. Yes. तो ये टॉमकैट यूजर डाला और मैंने कुछ रोल क्रिएट किया और वो रोल अलाउ किया है किस यूजर को, टॉमकैट नाम का यूजर को किया जिसका पासवर्ड है, एंड ही कैन डू ऑल दिस रोल स्टफ, राइट, विच इज डिफाइंड बाय अपाचे टॉमकैट इटसेल्फ। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे जाके इनेबल कर दिया एंड आई एम जस्ट सेविंग इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट स्टार्ट टॉमकैट अगेन, विल गो हियर and here I will access. Okay, now I will go to manager app. My username is what? Tomcat, and password is password. Okay. Now, if you see, right, this is the page, right, where I can manage, right, whatever right application that I am launching. तो अभी आप देखोगे यहाँ पे example, host manager ये सब आ रहे हैं और इनको stop, reload, deploy करते हैं। वैसे ही जब मैं अपना actual war file deploy करूँगा web apps में, तो मेरा application भी आएगा यहाँ पे Jenkins war करके, ये जो path दिख रहा है एप्लीकेशन पाथ, यहाँ पे मेरा Jenkins war भी आएगा, मैं यहाँ से उसको स्टार्ट स्टॉप राइट कर सकता हूँ, मेरा डिप्लॉयमेंट मुझे यहाँ पे लिख सकता है। नो, वी आर गुड राइट इन टर्म्स ऑफ राइट सेटिंग अप आवर Apache Tomcat. Now we will go and create a freestyle project, right, and we'll deploy in this remote machine, right, remote Apache Tomcat machine from our Jenkins, right, project, a Jenkins, right, web application out here, right. तो हम जाते हैं अपने Jenkins पे, हमारा Jenkins कहाँ है ये रहा, ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे डैशबोर्ड, ओके, और डैशबोर्ड में हम करेंगे न्यू आइटम, यहाँ पे डिप्लॉय वेब ऐप टू अपाचे टॉमकैट, इस नाम का हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है ये। ओके, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, मतलब यू आर नॉट लिमिटेड राइट, और जैसे कि अगर मैं मैवन करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे मैवन करना ही है राइट, क्लीन डिप्लॉय इस तरह की कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, वो स्पेसिफिक टू राइट जावा प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक अगर आप राइट कुछ बिल्ड एक्टिविटी। बट फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट जनरली राइट इज अ राइट वे ऑफ रनिंग स्क्रिप्ट, पब्लिशिंग रिपोर्ट, अगर आपको इस तरह की चीजें करनी है जहाँ पे यू डोंट नीड राइट सच इंटीग्रेशन टूल, राइट, you can usually use plugins right to do some deployment, so you can choose right freestyle, so they are also very popular right to do right different kind of right stuffs which right can be run through scripts or right some plugin. So demo freestyle, and now I'm going to write integrate with my code, which is where this one right here I will go and copy this. I can use Git or HTTPS, doesn't matter for me, right? Because our server is already right. So I will go to where is my Jenkins? Yeah, here, right? I will copy here. ये हो गया, इंटीग्रेट हो गया हमारा राइट गिट से भी। अगर आपको पोलिसम यूज करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। वी नो राइट व्हाट पोलिसम, आई एम नॉट कॉन्फ़िगरिंग इट राइट, वी विल बिल्ड इट। और इम्पॉर्टेंट चीज अभी जो हमें करना है राइट, वो हमें बेसिकली एक प्लगइन चाहिए राइट जो बिल्ड कुछ करे। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ ऐसा वो प्लगइन दिख नहीं रहा है, बेसिकली वो इधर दिखेगा पोस्ट बिल्ड एक्शन में। तो यहाँ पे वो प्लगइन नहीं है, डिप्लॉय टू कंटेनर प्लगइन जिसे हमें करना है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे वो प्लगइन का है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा प्लगइन गाइस, जेंकिंस के मैनेज प्लगइन्स, राइट। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव या दीपक ये क्वेश्चन था कि अभी आपने जो गिट का वहाँ पे जो यूआरएल दिया ओके, तो उसमें हमको की बेस ऑथेंटिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि वो जो ऑलरेडी था। बिल्कुल बराबर ना, बिल्कुल ऑलरेडी हमने कर लिया है ना, वो कल किया ऑलरेडी था। हाँ, इसी कारण उसके लिए हमें इस यहाँ पे करना नहीं पड़ा, वन टाइम एक्टिविटी। ठीक है, फॉर योर गिटहब सर्वर। ठीक है, तो अभी मेरे पोस्ट बिल्ड सेक्शन में वो प्लगइन नहीं दिख रहा है, तो मैं उस प्लगइन को यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन जो मुझे करना है डिप्लॉय करने के लिए रिमोट अपाचे में राइट, वो मैं प्लगइन लेकर आऊँगा। तो मैं इसको अप्लाई करके सेव कर देता हूँ एंड आई विल गो टू मैनेज जेंकिंस डैशबोर्ड, go to manage Jenkins, we'll go to manage plugins, और सिंस मुझे इंस्टॉल करना है तो अवेलेबल में जाऊंगा राइट, और मेरा प्लगइन का नाम है डिप्लॉय राइट टू कंटेनर, आगे देखो राइट डिप्लॉय टू कंटेनर। द प्लगइन अलाउज यू टू डिप्लॉय अ वॉर टू अ कंटेनर आफ्टर सक्सेसफुल बिल्ड राइट, ग्लासफिश राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर, अपाचे टॉमकैट, ये सब को राइट वो करता है। तो मैं इसको इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट,
सक्सेस हो गया है। अभी मैं जाऊंगा डैशबोर्ड में अपने प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन पे, डिप्लॉय राइट दिस, एंड हियर आई विल गो टू कॉन्फ़िगर, एंड नाउ इन द पोस्ट बिल्ड एक्शन राइट नाउ आई विल सी राइट दैट प्लगइन से जो आया है, तो डिप्लॉय वॉर ER2 कंटेनर, ये पहले नहीं दिख रहा था राइट, तो प्लगइन डाला उसके बाद आया, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। Now here right we have to give from where right you will fetch the war file and deploy to the container। तो obviously कहाँ पे जनरेट होगा, हमारे वर्कस्पेस में, टारगेट के अंदर राइट। टारगेट के अंदर हमारा जो बिल्ड नेम था, जो फाइनल नेम था, वो क्या है, जेंकिंस war.war। ये फाइल बिल्ड होगी राइट जब मेरा ये होगा राइट, जब मैं इसको राइट बेसिकली बिल्ड करूंगा। तो आई विल आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, ये बात समझ में आया, टारगेट के अंदर क्या बनेगा, जेंकिंस war.war। और ये मैंने क्या बोला, मेरा अगर ये गिट में जाओगे form.xml में, सर वहां पर भी वो जेनकिंस वार ही लिखा हुआ है राइट? हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, जेंकिंस war फाइनल नेम, है ना, तो ये नाम से बनेगा, इसका एक्सटेंशन .war होगा। और यहाँ पे मैंने जो आर्टिफैक्ट आईडी डाला, यहाँ पे क्या लिखा है, जेंकिंस war1, है ना, और मेरा वर्जन। तो जो जब मैवन रन होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जेंकिंस war1 -0.03 -snapshot.war, ये अपने वर्क स्पेस पे जहाँ पे भी टारगेट है वहाँ पे इस नाम से बनाएगा। बट ये जो बिल्ड नेम, जो बिल्ड टैग होता है, वो क्या करता है, फाइनल नेम कन्वर्ट करता है, रीनेम करता है राइट, डिप्लॉय करते वक्त जो चाहिए वो, तो वहाँ पे क्या बनाएगा, उस वर्जन को हटा के एक जेंकिंस war.war करके फाइल बनाएगा। दैट इज द नेम ऑफ फाइनल नेम राइट, पर्पस ऑफ फाइनल नेम, रीनेमिंग बेसिकली, ठीक है। अभी मैं आता हूँ प्रोजेक्ट पे वापस से, मैंने ये कॉन्फ़िगर किया। तो हमें हमें भी सर यहाँ पर सेम नेम ही देना पड़ेगा ना जो बिल्ड में पड़ा होगा? नहीं, जेनकिंस। हम बिल्ड में नाम चेंज करवा रहे हैं ना, बिल्ड नेम जो फाइनल नेम है वो तो उसे क्या कर रहे हैं, रीनेम करवा रहे हैं, तो हमें ये डालना है, जेंकिंस war.war डालना है, जो फाइनल नेम है वो डालना है, ठीक है, हम वहाँ पे वो डालेंगे। हम चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वर्जन वाला जो है वो भी डाल सकते हैं, नहीं बट नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जो बिल्ड में हमने यूज किया, जैसे जेनकिंस वार यूज किया, तो हमें कहाँ यहाँ पे पर भी बिल्ड जेनकिन बिल्ड बिल्ड में कहाँ यूज किया आप बोल रहे हैं, ये मेरे गिट में, form.xml, हाँ हाँ कहाँ पे, नीचे जेनकिंस वार लिखा है सर, ये हाँ बिल्ड बिल्कुल, के हाँ अंदर, हाँ तो बिल्कुल सेम नेम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, जेनकिंस वार राइट? बिल्कुल, हाँ तो वही दिया मैंने, हाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला सेम नेम देना है और एक्सटेंशन आपको ऐड करना, ठीक है, हाँ। क्योंकि फाइनल नेम हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ context path is what, the workspace directory that you don't have to give, वो बाय डिफॉल्ट उसने workspace directory का जो पाथ है उसको context path सेट किया, उसके ऊपर हम कहाँ से लेंगे वो पाथ हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नाउ कंटेनर ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इतने सारे कंटेनर ये सपोर्ट करता है राइट, इसको नीचे में स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो टॉमकैट का इतने सारे वर्जन, जेबॉस और आपका ग्लासफिश, तो हमने टॉमकैट 8.x किया, तो मैंने ये चूज किया। अब इसमें आई कैन गिव माई URL ऑफ टॉमकैट जो 8080 तक है, ये मैं कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसका क्रेडेंशियल भी देना पड़ेगा राइट, क्योंकि जब वो एक्सेस करेगा तो किस यूजर से करेगा, जो हमने टॉमकैट जो बनाया राइट, टॉमकैट यूजर और पासवर्ड, तो वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यूजर नेम इज व्हाट, टॉमकैट, एंड पासवर्ड इज व्हाट, पासवर्ड, ठीक है। एंड आईडी हम दे सकते हैं राइट, अपाचे टॉमकैट, जो भी है जिससे आइडेंटिफाई हो सके राइट, अपाचे टॉमकैट, और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड, ठीक है, डोंट सेव। और यहाँ पे मैं इस क्रेडेंशियल को यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं इसी से मतलब अपाचे टॉमकैट पे लॉगिन करूंगा और डिप्लॉय करूंगा। दैट्स इट द कॉन्फ़िगरेशन, इतना ही करना है, ठीक। और आपको मल्टीपल मशीन पे डालना है तो आप अलग अलग कंटेनर डाल सकते हो, अलग अलग URL डिफाइन कर सकते हो, तो मल्टीपल उस पर डिप्लॉय करेगा, ठीक है। नाउ इज एवरीथिंग गुड विद दिस प्रोजेक्ट? दीपक, इट मीन्स ये जो डिप्लॉय वॉर्स ईयर टू कंटेनर, इसमें जो हमने वॉर फाइल का जो पाथ डाला है, इट मीन्स दैट पाथ कंटेन्स हमारा बाइट कोड, ओके, हमारा कंपाइल्ड कोड, हाँ कंपाइल किया, बाइट कोड, पैकेज या यस यस, हाँ, एंड दैट विल डिप्लॉय ऑन दिस। यस, ऑन दिस। इज एवरीथिंग करेक्ट विद दिस प्रोजेक्ट? कुछ मिसिंग है यहाँ पे? थिंक।
कंटेनर ऐड किया ना हमने हाँ किया, वो भी किया है हमने सब सर किया। मेवन को इंटीग्रेट हाँ तो अभी अगर मैं पैकेज ही नहीं करूंगा तो वॉरफेल बनेगा कैसे? ठीक है, कहीं तो मुझे मैवन कमांड रन करना पड़ेगा ना। पोस्ट बिल्ड एक्शन तो पोस्ट होगा, लेकिन जब मैं बिल्ड ही नहीं करूंगा तो भाई कैसे वॉर फाइल बनेगा, राइट? सो वी मिस दैट ना। तो यहाँ पे हमें बिल्ड में क्या करना है, वो मैवन फ्री स्टाइल है। वी डू नॉट हैव दैट राइट मैवन प्रोजेक्ट वाला फ्लेक्सिबिलिटी की सीधा राइट गोल में जाके लिख दिया। तो यहाँ पे हमें कमांड लिखना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं इको राइट पैकेजिंग वेब एप्लीकेशन, जस्ट ऐसे लिखा और एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है वो डाल दिया mvn राइट क्लीन पैकेज, है ना? क्योंकि हमें डिप्लॉय तो करना नहीं है, डिप्लॉय के लिए हम पोस्ट बिल्ड एक्शन यूज कर ही रहे हैं, ये डिप्लॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेज कर देंगे, वॉर फाइल बनाना है अपने को, है ना? तो मैवन क्लीन पैकेज होगा रन, और जैसे ही पैकेज क्रिएट होगा पोस्ट बिल्ड एक्शन उसको डिप्लॉय करेगा। नाउ वी आर राइट इन गुड शेप अबाउट दिस प्रोजेक्ट, राइट? नाउ वी हैव डन व्हाटएवर वी वांट। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, राइट, और सेव करते हैं, और अभी हम रन करेंगे। अभी अगेन लेट्स गो टू दिस राइट आवर टॉमकैट वाला पेज का मैनेजर। यहाँ पे अभी भी इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे अभी भी हमारा एप्लीकेशन नहीं आया है, ठीक है? अभी भी दैट इज मिसिंग। नाउ लेट्स रन बिल्ड नाउ। एंड देखते हैं ये क्या करता है कंसोल लॉग में, ठीक है? रेपो डाउनलोड कर रहा है अभी, राइट, जो जो उसको चाहिए, राइट? फिर इसने डाउनलोड फ्रॉम सेंट्रल जो भी उसको चाहिए था वो लिया, राइट? बिल्ड सक्सेस हुआ, ठीक है? और इसने डिप्लॉय किया, यहाँ पे नीचे में देखो लिखा हुआ डिप्लॉइंग वेरलिब राइट फ्रॉम टारगेट जेंकिंस टू कंटेनर टॉमकैट एडक्स रिमोट विद कंटेक्स्ट नल, ठीक है? तो ये सारी चीजें उसने कर दी। अभी अगर मैं यहाँ जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, कैन यू सी जेंकिंस वॉर, यस राइट? अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, ओपन इन लिंक न्यू टैब, यू कैन सी राइट आई एम एबल टू राइट सी माई वेब एप्लीकेशन, जो JSP का पेज है, लई करेक्ट? उठले रे भगवान, काय प्लेसमेंट दिली नाही कम ऑन काय प्लीज काय म्यूट, सांगू तुला, समवन लेखनचं बघायला रोज रोज सावकार येते मग आमच्याकडे. प्लीज म्यूट आता तर JCB घेऊन आलाय हो इथं बाहेर. पैसे तू देतो पण नाही म्हणत आहे माझे. I don't know. I am not able to मग see आम्हाला this. शिकवून काय हल्ली कसे करायचे काय करायचं. I think it's Aarti. तू नुसतं हसतो बाबा काय Aarti is आहे now बाबा, मी असं muted. नाही. हे Aarti बरोबर is now नाही. muted, but still मी आम्ही बघ साधं जॉबची जरी अपॉर्च्युनिटी आली तर is hanged for me, right? I don't know. I think now she muted. Okay. Okay. Yeah, fine. Anyway, so you can see, right? This application. Yeah. Okay. This application basically, right, has right launch. Now I can manage this application also. For example, I want to stop only this application. So if I click on stop here, okay, and I will try to access again this right application, say it is not right allowing me. Now if I want to start right this Jenkins for application, if I start right just started, and if I want to access it again, right, I can access. Okay, so this is what So right yeah, go ahead. ये जो बेसिकली जेंकिंस वॉर ये जो एक फ्रंट एंड हमको मिला है, ये कंटेनर के उससे वर्क कर रहा है, राइट? क्योंकि बिकॉज हम ये स्टार्ट स्टॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है। बिल्कुल, It's a क्योंकि हमने container, right? क्योंकि हमने क्या किया अलाउ किया है ना, इस यूजर को। कौन यूजर? ये जो लैपटॉप है मेरा, है ना, जो एक्सेस कर रहा है, इसको मैंने अलाउ किया है कि यू कैन मैनेज एप्लीकेशन राइट फ्रॉम द यूआई अपाचे टॉमकैट यूआई इटसेल्फ। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जाके बैकएंड में जाके सर्विस स्टॉप करनी पड़ती है ना, Okay. right? So that is what the manager right role right in terms of managing right your application was given. Okay. Yes. Also one thing right that you can see right now I can manage my application rollout very easily na, to different right server Apache Tomcat server instance जहाँ पे मुझे rollout करना है with deploy to container plugin. तो वहाँ पे क्या है, मैं n number of right container add कर सकता हूँ right using right
जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे और इसके कॉन्फ़िग में जाता हूँ वापस से, तो इन जनरली इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए आई हैव सीन राइट इट्स वेरी वाइडली यूज दिस प्लगइन। अभी मैं नया कंटेनर ऐड कर सकता हूँ राइट, है ना? तो आई कैन ऐड एन नंबर ऑफ सर्वर्स राइट इन विच आई वांट टू डिप्लॉय। यहाँ पे एक और नया कोई सर्वर मैंने अपाचे टॉम का इंस्टॉल डाला है, वहाँ पे भी उसका क्रेडेंशियल डाल के वहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ। तो मेरा एक बार में मैं 2 इंस्टेंसेस पे राइट मेरा वॉर फाइल डिप्लॉय कर, ठीक है? So I think I'm done for the day, right? Any question? और दीपक, ये जो पाइपलाइन हम कल सीखेंगे ना, उसके बाद हम क्या AWS के टूल्स यूज करके कोड बिल्ड यूज करके वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं क्या? See, कोड बिल्ड नहीं हम लोग के उसमें है राइट, जो डेवलपर टूल है राइट वो नहीं है, बट इट इज अ वेरी सिमिलर लाइन। तो उसमें मैं आपको बस इतना गाइड कर सकता हूँ कि अगर आपको यही इस तरह के पाइपलाइंस वहाँ बनाने हैं राइट, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट जेंकिंस राइट इज अ कंटिन्यूअस बिल्ड सिस्टम आउट देयर ना। तो वहाँ पे अब क्या होता है, वहाँ पे आपको एक बिल्ड स्पेक YAML फाइल होती है। जो बिल्ड स्पेक YAML फाइल में क्या करते हो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, है ना, कि आपको क्या करना है। तो आप वहां पे बोलते हो कि मेरा ये, जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आप बोलते हो मेरा कोड कमिट रेपो ये है, इस कोड कमिट रेपो से आप आर्टिफैक्ट्स निकालो, उसके बाद ये चीजें करो, जो भी आप मैवन कमांड जो भी राइट वो करते। तो वो उसको रन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ऑब्वियसली। AWS तो क्या करता है, वो एक्चुअली राइट एक कंटेनर लॉन्च करता है राइट। वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंटेनर चाहिए आपको, यूबुंटू का चाहिए, किसका चाहिए। तो आप जब स्पेसिफाई करते हो तो उस पर वो क्या करता है, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस रन करता है, बिल्ड करता है सब कुछ, एंड आफ्टर दैट यू डिसाइड राइट हाउ यू वांट टू डिप्लॉय राइट, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म यू कैन यूज राइट, ब्लू ग्रीन कैनरी डिप्लॉयमेंट व्हाटएवर राइट, सो यू कैन यूज। तो उसका अपना स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, एंड वेरी लिमिटेड, नॉट वेरी राइट गुड लाइक जेंकिंस आई वुड से। जेंकिंस में जैसे यू कैन हैव राइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग प्लगइन्स, वहां पे वो सब नहीं है, वहाँ आपको आपको कोड और उस तरह की चीजें यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है। एनी मोर क्वेरीज? No, So from do my end. do try for yesterday's video. There is some right because of network fluctuation. Yesterday video had some distortions, so I am cleaning them up right. So I will definitely share this both videos today. ठीक है, तो आप इसको अपने लीजर टाइम पे जब भी आप पढ़ रहे हो बेसिकली, तो उस समय इम्प्लीमेंट हैंड्स ऑन जरूर करना राइट, तभी आपको और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे। और मैं एज अ ये बोल सकता हूँ कि अभी नेक्स्ट वीक में हमारा क्लास है, आपका टाइम है थोड़ा बहुत, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट डिफरेंसेस बिटवीन राइट स्क्रिप्टेड पाइपलाइन and basically right normal pipeline right, that is declarative pipeline। तो ये declarative nature और imperative nature का difference है, वो आप थोड़ा study करना, so that when I will be explaining you right or giving you what are the major differences, तो आप समझ पाओगे। दूसरा, डोंट नीड टू लर्न ग्रूवी राइट। अगर आपने कहीं पढ़ा कि ये ग्रूवी DSL यूज करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ग्रूवी अच्छे से पढ़ना है, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। डोंट वेस्ट योर टाइम राइट going in that direction। It's just a template for you in which right again I would say right you are using certain keywords। तो आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे पाइपलाइन कीवर्ड, स्टेज वेरिएबल डिफाइन करना है तो कैसे करना है, तो वो सब चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको उसमें इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत नहीं है ग्रूवी को, ठीक है। दीपक, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मिस मुझे पता नहीं कि वो वैसा पॉसिबल है या नहीं, मेरे कि मेरा लॉजिक बोलता वैसा पॉसिबल नहीं है। क्या हमारा जेनकिंस सर्वर और हमारा टॉमकैट सर्वर एक ही मशीन नहीं रहेगा ना? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, आप Because रख भी both, सकते हो, हाँ, आप रख पर भी सकते हो, ओके, आप रख भी सकते हो और आपका ये प्रोजेक्ट चलेगा भी, लेकिन अगेन ओनली वन थिंग, रिसोर्स होना चाहिए अच्छा खासा, है ना, मतलब दोनों रन करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस, आई थिंक इंटरनेट इशू। मैं ये बोल रहा हूँ कैपेबिलिटी होना चाहिए,
आपके सिस्टम पे जहाँ पे आप ये दोनों डाल रहे हो, ठीक है। अभी लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो आई कैन से यस, राइट। बट अगर आप एक्चुअल देखोगे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका ये जो डिप्लॉयमेंट सर्वर्स होते हैं वो अलग ही रहते हैं, रिमोट ही होते हैं, है ना, सेम में नहीं होते। यस, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ही मशीन रहेगा तो उसका जेनकिंस और टॉमकैट का पोर्ट नंबर तो सेम ही रहेगा। चेंज कर सकते हो ना server.xml में यस जाके। यस यस। हाँ, हाँ, yeah, Deepak, हम्म। instead of Groovy, can we use Python there? Or See, there is a way, right, of using, right, Python, but generally, right, it is Groovy DSL that it uses. मतलब उसके अंदर आप Python का कोड कॉल कर सकते हो, okay. ठीक है। But pipeline is a right Groovy DSL. Okay. Anything else? दीपक, आप जो वीडियो शेयर करोगे ना तो टेक्स्ट फाइल भी शेयर कर देना प्लीज। कल हाँ मैं बिल्कुल, नेक्सस का नेक्सस और कल अपना जो डिसाइड हुआ था ना वो नोड वाला, हाँ वो प्रोजेक्ट जो अपना मास्टर स्लेव वाला, ठीक है, डेफिनेटली, या। Okay then guys, bye, take care everyone, yeah.